education in India, and there were so many differences. Choice based नहीं है, ये नहीं, वो नहीं. There are a lot of differences. So point was, वो इतने differences रहने के बाद, right? इतने differences रहने के बाद main problem क्या आ रहा था? Main problem क्या था? Quality. Whenever we identify something, ये ऐसा नहीं होता, वो वैसा नहीं होता, उसमें problem कौन सा है? Quality. Always there is one point agenda, and that is quality. Quality in teaching, quality in learning, quality in systems, quality in academic administration, quality in management, quality in evaluation system, quality in assessment tools, quality. The entire college as a system, if you find, then it is quality, quality and quality. It is only that. You just cannot think of anything else. क्वालिटी है क्या, मतलब हर जगह क्या हो जाएगा कि हमको बेस्ट क्वालिटी है क्या, एंड देन क्वालिटी के बेंचमार्किंग करना पड़ेगा, राइट? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया having two main bodies like UGC and AICT, right? So UGC always talk about benchmarking the quality parameters through NAC. We all know NAC, you know, everybody has, like, I think all of you must have undergone, seen the process of NAC. But the point I want to put across is NAC is about quality, and NAC distributes it into, say, 7 main criteria. So 1000 points. So 1000 points, 7 point criteria रहने के बाद, then we need to understand that what exactly, like, priority parameters which they look for. अब ये क्वालिटी मैटर हमको आज देखना है, पर सबसे बड़ा गड़बड़ी हो गया कि NAC, I'll share my presentation just a minute. Issue was क्वालिटी बोलते बोलते NAC had a lot of ups and downs. बहुत लोगों ने गालियां दी, बहुत लोगों ने बोला करप्शन है, बहुत लोगों ने बोला कि, आई मीन, वो आप सुन रहे होंगे, पेपर में आ रहा था, इवन chairperson of NAC resigned from his position saying that this is all out of control, people are corrupt, this that, ऐसा openly ये सब हो गया था. इस चक्कर में NAC सिस्टम बंद हो गया. It was kept to an halt. Then hundreds of applications were there. What to do with that? पैनिक हो गया, बहुत पैनिक हो गया कि ये कैसा करना, वो कैसा करना. इतने लोग उसमें फंसे हुए थे, लोगों को NAC के बिना बहुत सारे फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी. So how to do that? Everybody was then worried about, जिन्होंने अप्लाई कर चुके थे. हमारे कॉलेज का तो जस्ट मिल गया था हमको A+. So we were qualifying for A++, but they were saying कि नहीं, ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज को देंगे, बहुत हाई क्वालिटी को देंगे. They reassessed then and there and said, no, you are like 1 point something, not 0 point something less than A++, and so we got A+ grade, and we were fine with that. इस grade का कोई नहीं, कॉलेज का क्वालिटी लोगों को पता है. But ultimately college has to display the same quality, right? आपको NAC मिल गया, whatever way, that doesn't mean people will believe in you. People can visit the college, people can talk to teachers, people can see the placements, people can see the actual outcome of academics, what is happening, and hence the excellence. Achieving excellence through NAC. अब NAC के through excellence, my title is bit tricky. Excellence through NAC. Excellence तो मेरे को करना पड़ेगा, लेकिन NAC और AICT की तो all institutions like ours is an engineering institution, we have 16 programs. So 16 programs, all of them are like, you know, 16 programs are there, and they are like, you know, 16 programs है, और they are all, out of them 10 were qualified, so all 10 are accredited by National Board of Accreditation, that is NBA. इनमें 2 ही important body चलती है इंजीनियरिंग साइड में, मेडिकल की अलग है, but they are NAC and NBA, National Board of Accreditation and NAC. So NAC is allotted for college and NBA is allotted for program, branch को program बोलते हैं, like mechanical, electrical, computer science, artificial intelligence, data science, cyber security. These are the branches, and these branches are
These branches are exclusively accredited by grilling them for 2.5 days. बहुत अलग सिस्टम है. अगर आप MBA अचीव कर रहे हो ना, so I always tell them that people should, all teachers must go through क्वालिटी बेंचमार्किंग. कहाँ हो रहा है क्वालिटी को, मतलब व्हाट इज क्वालिटी in research paper, what is quality in research, what is quality in industrial consultancy, what is the quality in teaching, what are the quality parameters in learning, what are the quality parameters, quality management, what are the quality, how you are different, how you can prove that you are different than everybody else in this world, distinctiveness, your best practices which are nowhere in the country at least. ये सब ढूंढ के हमको एक पैनल क्रिएट करना पड़ेगा इन विच प्रिंसिपल और डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कैन नॉट डू अलोन. इट इज इंडिविजुअल टीचर लाइक यू एंड मी, वी हैव टू वर्क अपॉन इट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? तो ये कितने पैरामीटर, टीचिंग कितना अच्छा रखना चाहिए, रिसर्च कितना अच्छा होना चाहिए, इसके लिए नैक था. बट नैक का क्या था, 1 डे ट्रिप था. दे यूज्ड टू विजिट 1 day and second day they used to write down the results and submit, and then we used to get a grade. Grade क्या थे, वही C, B, A plus, A double plus. They were the typical grading system NAC का था सालों से. और वो कितने साल के लिए मिलता था सबको, मतलब C ग्रेड भी मिला जिसको, B भी मिला, B plus, B double plus, जो भी मिला आपको 5 साल का मिला है. तो 5 साल people used to enjoy. हो गया रे वो 5 साल हो गए, शांति. अभी 5 साल, it's a pretty long time and you can get relaxed with respect to your quality parameters. देखेंगे ना आखिरी 2 साल में सब कागज बना लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे, कंसल्टेशन कर लेंगे, कुछ कॉन्फ्रेंस ले लेंगे, वर्कशॉप ले लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. इसके पोस्टपोनमेंट के लिए बहुत स्कोप था. किस लिए पोस्टपोन के लिए, क्यों स्कोप था? कि 5 साल. NBA has got 5 years and 3 years, but 99% colleges are awarded 3 years. और 3 साल में कैसा हो जाता है, आपको लास्ट 3 years का डाटा नेक्स्ट NBA के लिए देना है. सो ऑब्वियसली द मोमेंट यू गेट रिजल्ट यू कैन स्टार्ट वर्किंग फॉर नेक्स्ट NBA. So NBA like ensures more. How many of you are from engineering here? We have 79-80 people. Ashwini madam is from engineering. How many are from engineering? Can just react. How many of you are from engineering college, university, department, like mechanical, electrical, electronics? Yes, anyone? All are from different fields, like, right? No one is from engineering, only one. So fine, okay, it can be. But I thought there will be few of you who are like, from engineering background. So जो engineering के background है उनको तो National Board of Accreditation के norms है. There are 9 criteria. Earlier they used to have 10 criteria. Now they have reduced to 9 criteria, and the checking, the evaluation, the assessment of assessment tools, indirect and direct tools, इतना ज़्यादा वो सब स्ट्रिक्ट है कि NBA में से बच के बेकार क्वालिटी निकलना टफ है. NAC has got like huge university to be scanned. A big college like us, like my college is what, 75 acres, Priyadarshini, 75 acres. So reaching out to the playgrounds, to the hostels, to various departments and central facilities like library and gymnasium and all those swimming pools, it's so difficult to finish up in 1 day. So obviously it's a fast procedure in which हम न चाहते हुए भी हमको कुछ ना कुछ स्किप करना पड़ता है. दैट वाज द पॉइंट. सो अचीविंग एक्सेलेंस, तो अब क्या होता है, लेकिन NBA में बहुत स्ट्रिक्ट है. बट एनीवेज आवर सेशन इज फॉर NAC. UGC रिकॉग्नाइज NAC. बट क्या हो गया, स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2 years बैक देन NAC गॉट क्लोज्ड कंप्लीटली. Chairman resigned. He said this has to be abolished completely. Let us have, so committee got formed. अनिल सहस्रबुद्धे जी को चार्ज दिया, फिर और नए चेयरमैन बने, फिर डायरेक्टर नए बने, एंड देन एंटायर सिस्टम वाज लाइक revamped. तो वो अब तक रिवैम्प हो ही रहा है. लास्ट 2, 2.5, 3 साल से क्या हो रहा है, अभी तक NAC लॉन्च हुआ ही नहीं. There are a lot of suggestions, there are a lot of many, but it is expected. Like I talked to one of the NAC person there in Bangalore.
He said within a month or two we will launch back original NAC, but now with completely different outlook. क्या चेंज कर रहे वो? बाइनरी सिस्टम कर रहे. पहले क्या था? ए प्लस, ए डबल प्लस, बी प्लस, सी, वो सब ग्रेडिंग था. अब क्या ग्रेडिंग कर दिया उन्होंने? बाइनरी. बाइनरी मतलब दो ही ग्रेड से. व्हाट आर द ग्रेड्स? accredited, not accredited. And how for how many years? 3, not 5. फंडामेंटल चेंजेस क्या हो गया? 5 साल था तो अभी 3 साल का हो गया. 3 साल में भी ए प्लस प्लस डबल प्लस कोई स्टोरी नहीं है. कोई कम्युनिटी विजिट करेंगे क्या? नहीं. इट विल बी 100% डिजिटल, ऑनलाइन. सो डिजिटली AI basis. Now these days AI tools are there, so AI can always verify very fast and very smallest possible data. So AI assessment tools भी create कर लिए NAC ने भी. 2025 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि लास्ट ईयर दे डिक्लेयर कि now we have created an AI tools which will like scan every smallest detail within few minutes, which was the biggest task. DVV जो आता था हमको, data verification and validation was very difficult because it used to do a particular software through DVV में करते थे. अब क्या हो जाएगा? AI based. So you have to fill in everything online. AI will evaluate, assess and it will grade you. Accredited or not accredited. क्योंकि दो ही बोलना है. If you are not even having minimum standards for faculty, for students results, for outcome of the student, this that, ये तो minimum standard भी नहीं है, तो आप सीधा not accredited है, NA status मिल जाएगा. और आप ठीक ठाक हो, न्यूली एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट समान हो, थोड़ा बहुत रिसर्च है, थोड़ा सा रिसर्च है, थोड़ा सा पेटेंट, एक हाथ दो पेटेंट्स है, ये सब टाइप का अगर एक न्यूली एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट का लेवल रहा तो यू विल बी एक्रेडिटेड. तो इसमें क्या हो गया कि वी हैव टू नाउ सी, बट हर चीज क्या है? आउटकम बेस्ड. इट्स नॉट व्हाट वी टीच, इट इज व्हाट स्टूडेंट्स लर्न. क्या है? टीचर सेंट्रिक कितना भी सर फोड़ लो, नहीं होने वाला. टीचर सेंट्रिक की जगह आप स्टूडेंट सेंट्रिक शिफ्ट करना पड़ेगा. मतलब मैंने कितना पढ़ा है, हमको क्या है? वी हैव टॉट दिस थिंग, मैंने 6 यूनिट कंप्लीट किए, मेरा क्लास है, मैंने प्रैक्टिकल लिए, मैंने उनको यूट्यूब. तुमने कुछ भी किया होगा, बच्चे को समझा है क्या? Whether student has understood or not is the main question, and how much he has understood. Who will assess and evaluate the exact learning happened? Can we assess the learning real time when we are teaching actually in the class of 60 minutes or a batch of 20 to 120 minutes? मतलब 2 घंटे का जो प्रैक्टिकल है उसमें हम रियल टाइम समझ रहे हैं कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, उसको फंडामेंटल्स मालूम है क्या, उसको एप्लीकेशन ऑफ माइंड है क्या, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, अंडरस्टैंड, डिफाइन, तो वो वाला चीज आ गया. सो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हिसाब से बच्चे का लर्निंग हो रहा है कि नहीं, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं. यू नो all these things were making very high impact and importance on education. तो वो करने लग गए सब लोग. अब वो करने के बाद क्या हुआ? What was the point? Output आ गया. I taught 5 chapters, you learn 5 chapters, I took assessment and evaluation and examination on that and you got 10 on 10 pointer, so everything went fine. पर ऐसा होता नहीं है. इससे आउटपुट बोलते हैं इसको. So what is that? Output and outcome is different. Even National Board of Accreditation, I remember first time we appeared for NBA in maybe what 2001 or something, 25 years back. I faced first National Board of Accreditation committee. That time it was input and output. Student admission हुए क्या? Admission हो गया, you will get marks. आपने पढ़ाया, you will get marks. बच्चों को मार्क आए, they will get marks. मतलब एक्टिविटी करने पे भी मार्क मिलते थे. It is my point. Doing something was fetching some marks, fetching some credits. Now it's not like that. What you have done, how many classes you have conducted, how many practicals you have conducted, how many extra classes, whatever you have done, we are not bothered. NAC says हमको उससे कोई नहीं है. वो तो करना ही चाहिए ना, मतलब वो तो प्रोसेस है. प्रोसेस पे मार्क नहीं है, मार्क है आउटकम पे. बच्चों का रिजल्ट कितना आया, प्लेसमेंट कितनी हुई, बच्चों ने इंटर्नशिप कितनी की, कितनी इंडस्ट्री में जाके वो कनेक्ट होके अपना काम खुद का कर सके, जहाँ इंटर्नशिप की वहीं प्लेस हो गए क्या, उनका असेसमेंट कैसा रहा, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी, वो फैक्ट्री जहाँ उन्होंने काम किया इंटर्नशिप के लिए 5-6 महीने, व्हाट वाज देयर ओपिनियन, व्हाट इज देयर सर्टिफिकेशन, व्हाट काइंड ऑफ इवैल्यूएशन दे डिड व्हाइल ही वाज स्पेंडिंग 6 months वर्किंग इनटू दैट इंडस्ट्री. ऑल दीस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. सो इट्स नॉट व्हाट वी टीच, इट इज व्हाट दे learn. So it has to be outcome based approach that focuses on graduate attributes
और आउटकम आफ्टर कंप्लीटिंग द एकेडमिक प्रोग्राम। ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स आना चाहिए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग बन गया क्या, सेल्फ लर्निंग लर्नर बन गया क्या, उसको बाकी सब समझ में आ गया क्या, उसको एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स उसका ऊपर चले गया है क्या, उसका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हुआ, उसको टीम स्किल्स बराबर हुए, कुड ही गेट इनकलकेटेड इम्बाइब विद लीडरशिप क्वालिटी। इतने मतलब ये 11-12 प्रोग्राम आउटकम जो बोलते 11, अभी 11 की उन्होंने एनबीए में, बट अर्लियर इट वाज स्टूडेंट्स एट्रीब्यूट्स। जो ग्रेजुएट हो गया मेरे कॉलेज से उसके एट्रीब्यूट्स क्या है? ही इज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, ही इज एस प्रॉब्लम सॉल्वर, he has an analytical mindset, he worries about environmental impact of whatever technology he is working into। 12 ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स है। किसने दिए थे पहली बार ये ग्रेजुएट एट्रीब्यूट वर्ड किसका आया? वॉशिंगटन अकॉर्ड। इट इज द बॉडी विच एक्रेडिटेट्स आवर एक्रेडिटेशन बॉडीज। गेटिंग माय पॉइंट? सो वो वाला है। कैन यू टेल मी, आई मीन हाउ मेनी ऑफ यू हैव A+? You are from different colleges and they have some NAAC status. Let us open chat box. Can you write down whether how many of you have A or A+ to your institution? Come on, fast. I could see 92 people sitting. Chesna Richard, A+. Wow. Even mine college is A+. Next. I'm waiting for all. How many of you have A or A+? Dr. Rahul says A. Which college, sir? Chandra Kumar A. Siddharth Shetty B. B++. Pawan Chauhan. Keep posting. Ernakulam. Fine. B++. Yes. The Rampet Science College A+. Meenakshi Tamta Madam B. Rakesh G A+. Novomi Ma'am says B+. Come on, fast. I want all of you to write down at least the grades, and so that after this session, will you be able to tell your teachers, tell your management B. Shri Kala. Yes. Ravikant sir A+. Mansi Patil B++. Shubham. B+. Yes. So I could see like Knight College Kolhapur. Sir, it's still Knight College? I mean, it operates? It's for adult education? Nandakumar sir? Knight College Kolhapur. Knight College Kolhapur. So what are the timing of your college? Timing 4:30 से 7 बजे तक. 4:30 वाजता सुरू होते आणि 9:30 वाजता. ओके 1971 ला स्थापना है. अरे बाप रे, अच्छा. सो जो लोग नौकरी करते दिन भर वो लोग भी दे कैन जॉइन हियर, राइट? हाँ सर, साधारणतः आपल्याकडं 85% विद्यार्थी हे काम करून शिकणार आहेत आणि ज्यामध्ये आरोग्य सेविका, अंगणवाडी सेविका पासून गव्हर्नमेंट सर्वंट सुद्धा आहेत की ज्यांना दिवसा काम करून शिकता येत नाही, ते संध्याकाळी येतात आणि शिक्षण देतात. ग्रेट. क्योंकि मेरे को नागपुर में तो एक भी नाइट स्कूल बची नहीं अभी। पहले नाइट स्कूल्स भी थी, नाइट कॉलेजेस भी थे, सेकंड शिफ्ट कॉलेजेस भी थे। AICTE ने बहुत अच्छा रूल लाया था, अभी वो सब बंद कर दिया। सो ग्रेट टू नो दैट। गवर्नमेंट कॉलेज आपल्याकडे 11वी, हाँ सर, आपल्याकडे नाईट कॉलेजला 11वी आर्ट्स कॉमर्स पासून MA पर्यंत आहे. अरे वाह, आणि विद्यार्थी निघतात. ग्रेट. मातृसेवा संघ इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क बजाज नगर B++. पवन चौहान सर नागपुर, सातपुर नाशिक C ग्रेड, B++. गवर्नमेंट कॉलेज बुंदी, महेश कुमार मीना, ग्रेट. सो वी ऑल नो दी ग्रेडेशन सिस्टम. अगर आप तब कॉलेज में रहे होंगे या एटलीस्ट यू नो गवर्नमेंट PG किशनगढ़, यस,
कॉलेज तलसारी, अनंत पाटिल सर B+, यस 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 फाइन। सो जो अभी भी हम देख रहे हैं, हम लोग जो यहाँ पे 93 लोग बैठे हैं, उसमें हार्डली 10 या 12 कॉलेज A और A++ है, A++ तो एक भी नहीं है, पर A और A+ है, whereas all other are in सुजाता बोरकर मैडम, दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, यस यस A+, यस आई नो तागाराम B+, B+, PWS B++, yes fine। So we know the gradation system, we know कि कितना मुश्किल जाता है A लेना या A+ लेना, क्योंकि बात आउटपुट की छोड़ी, हमको लगता है हमने पढ़ा दिया, हमको लगता हमने कर लिया। भालेराव साइंस कॉलेज सावनेर, यस यस B, okay, मेहरे, मनोहर मेहरे is here। Siddharaj Shetty Sidhu, I am from typical rural government college, B only, fine, B is fine। You know, the point is कि we are accredited, we have undergone the process of establishing quality benchmarking। तो हमको क्या मिला, क्या दिया उन्होंने, that's a different story, बट हमने आउटकम को सोचा नहीं होगा शायद, इसलिए B++ मिलता है। So it's not what we teach, it's what we learn, it's not output, it's not how many classes we conducted, it's not what result you got, no, it is about how much you can do, that is something which is so important। Thank you so much, keep posting something on that। Next, एक सेकंड नाम Dharamveer sir says SD Government College Bewar, yes sorry it got internet। अच्छा तो चार बॉक्स का आमच्याकडे पार्टिसिपंट सगळे So lot of B grade, A grade, I could see the messages. Thank you so much for honoring my request for continuous this thing। I'm sharing my let me check it। फाइन। सो टिपिकल एग्जाम्पल आपने भी बहुत बार देखा होगा, मैंने भी देखा है। क्या एग्जाम्पल रहता है? इट इज टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ, इज इट विजिबल नाउ? नो, आई गेस प्रेजेंटेशन इज नॉट विजिबल, राइट? दिसत नाही सर। ओके जस्ट अ सेकंड, something went wrong। फाइन, सो दॅट इज देअर। सो इनपुट, आउटपुट आणि आउटकम यातला फरक एकदम सिंपल आहे। इनपुट काय असतं? एक पौधा हम लगा रहे, छोटासा पौधा लगा रहे। आउटपुट काय? भरपूर मोठं वृक्ष झालं आणि प्रचंड त्याला छान छाया आ गई, भरपूर हिरवगार झालं झाड, ते आउटपुट आहे। झाड हिरवगार होण्यासाठी तर आहेच, पण काय पाहिजे आपल्याला? फळं पाहिजे। सो जब तक उसको आम नहीं लगते लटपट, आम लगना इज एन आउटकम। एकदम सगळ्यात सोपं आहे आउटपुट, इनपुट आणि आउटकमचं उदाहरण। सो इनपुट इज एक पौधा लगाना, आउटपुट इज उसको बहुत बड़ा करना, पानी देना, बड़ी सी छाव मिलना, ये सब मिल रहा ठीक आहे। रिझल्ट आला मुलांचा ठीक आहे, फर्स्ट क्लास आले ठीक आहे, हिरवगार झाड होणं ठीक आहे, पण झाड हिरवगारसाठी आम्ही झाड नाही लावलंय, झाड आम्ही आंब्यासाठी लावलाय, आम्ही फळांसाठी लावलाय। फळं म्हणजे आउटकम है। सो फल आना जो है ना वो आउटकम है। सो इफ यू वांट टू रीप फ्रूट्स फ्रॉम, अनलेस यू गेट फ्रूट्स, इट्स ऑफ नो यूज वेदर इट इज नीम ट्री और मैंगो ट्री। डू यू अग्री टू दिस? हमने झाड़ लगाया आम का, और अगर उसको एक भी फल नहीं है तो फिर नीम का ही झाड़ लगा लेना था, मोर मेडिसिनल था।
हमने आम का इसलिए लगाया कि हमको फल होने चाहिए थे. सो आउटकम इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर टीचर्स. वो आउटकम ही हमको अगर मजा नहीं आ रहा तो फिर हम क्यों करेंगे. सो दैट वाज द पॉइंट. सो नाउ इट इज इनपुट आउटपुट और आउटकम. तो हमारा नैक रहे, एनबीए रहे, वर्ल्ड कप, कोई भी एक्रेडिटेशन बॉडी रहे, इट इज ऑल अबाउट आउटकम. नाउ लेट अस सी वेरी फास्ट our 7 criteria. NAC is still 7 criteria. They have not given the new instructions till date. So what is first? Curriculum aspects. कितने नंबर है इसको? 50. NAC has 2 type of columns. You can see on this. अच्छा, थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ मैं. Right. Yes. It is distribution of weightage across key indicators, right? So curriculum aspect. What is that? Curriculum design, curriculum planning, implementation, academic flexibility, curriculum enrichment and feedback system. These 5 important things are what? 150 marks. 150 mark किस बात को है? Curriculum design and development. If you are not autonomous, if you are not university, तो ये वाले 50 मार्क तो आपको वैसे मिल जाएंगे if you can convince them. कि भाई हमारे हाथ में नहीं, इट्स अवर यूनिवर्सिटी, वी आर यूनिवर्सिटी कंडक्टेड कॉलेज, वी आर एफिलिएटेड टू सर्टेन यूनिवर्सिटी, सो वी कैन नॉट डू दिस दैट. वो इतना आसान है. सो दैट हैज बिकम लाइक दैट वाज डन. सो करिकुलम डिजाइन एंड डेवलपमेंट ये 50 है. लेकिन करिकुलम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, दुनिया का सारा एवरीथिंग गेट्स चेंज इफ यू कैन चेंज द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंटेंट. 6 यूनिट है आपके, 6 यूनिट में से भले 2 ही यूनिट करिए, 5 यूनिट किए, 4 यूनिट करिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छा किया है. व्हाट इज द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट करिकुलम प्लानिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. देन करिकुलम एनरिचमेंट. I mean, how you are telling student that this is enriching you. You are learning new things. You can innovate once you understand, grasp, once you have a knowledge of this entire thing. तो आप और इसमें मुझे प्रगल्भता ये रहेगी, मैच्योरिटी आ जाएंगे आपको कंटेंट के बारे में, वो सब चालू हो जाता है. अनलेस सो फिर एक बार वो चालू हो गया तो फिर सब कुछ है. तो देन एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी. यूनिवर्सिटी को 50 मार्क है. फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? हाउ मेनी इलेक्टिव्स यू आर गिविंग, हाउ मेनी ओपन इलेक्टिव्स यू कैन ऑफर, हाउ मेनी थिंग्स विच स्टूडेंट कैन choose. If he has a hobby, he is a good singer, he can be a good cricketer, he can be a good painter, sketcher. What is the provision in the syllabus that student will utilize this? And finally, feedback system. So first criteria is all about curriculum. It's all about syllabus. It's all about how you design syllabus, why you design syllabus, whether it will be an outcome-based syllabus, whether students learn it properly, and if they have learned, can we get a feedback out of that, and that feedback can be understood. So what is the point? Curriculum. First criteria is 150 marks curriculum. Next is teaching, learning, evaluation. इसमें भी देखो पहला क्या है? Just student enrollment and profile. What is their cutoff? How many students get admitted? What was your intake versus admission? Catering student to diversity. This is most important. See, these words are not words. These are philosophies. Diversity, teaching, learning process. 50 marks for autonomous colleges. Teacher profile and quality 50 मार्क. अभी एनबीए ने तो 120 मार्क्स. एनबीए का भी नया फॉर्मेट आया है, एनबीए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन. टीचर प्रोफाइल पे 120 मार्क है और उसमें 40% पासिंग है. Every teacher must have good research papers, citations, papers, patents, workshops attended, workshops conducted, conference attended, conference organized, and consultancy above 4 lakhs, and research, research grants fetch more than 10 lakhs, and then ये सब sponsored research project more than 5 lakhs. इतना कर दिया है. 120 मार्क इतने टफ है मिलने के लिए उसमें, और उसका एवरेज अगर 40% से ऊपर नहीं जा रहा तो यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर एनबीए. इट इज सो टफ नाउ. फैकल्टी कंट्रीब्यूशन, जहाँ फैकल्टी स्ट्रांग है वहीं कॉलेज स्ट्रांग है. दिस इज फॉर श्योर. आई टेल यू, ऑल आईआईटीज आर सो कीन, ऑल आईआईएम्स, यू कैन सी what level of salaries they are offering, what kind of people they have,
IIM में तो कितने लोग हैं जो वाइस प्रेसिडेंट CEO ऑफ एन मल्टीनेशनल कंपनी का आदमी ऑन अपनी जॉब छोड़ के ही कम्स एंड ज्वाइंस IIM एज अ प्रोफेसर. IAS officers, IPS officers and IRS officers take voluntary retirement and become professor of practice in IIM. Professor of practice. ये काम हो रहा है. If these people are like so learned class of country, ये लोग टीचर बनेंगे तो उनका इवैल्यूएशन कितना जोरदार रहेगा, उनका टीचिंग का लेवल कितना रहेगा, उनका नॉलेज ट्रांसफर की स्ट्रैटेजी कितनी स्ट्रांग रहेंगी. सो इसके बाद स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे. अब ये ऑब्वियसली टीचिंग लर्निंग रहेगा, इवैल्यूएशन प्रोसेस रहेगा, स्टूडेंट परफॉर्मेंस मतलब लर्निंग आउटकम्स. परफॉर्मेंस मतलब रिजल्ट में नंबर आए 10 पॉइंटर नहीं, उनका आउटकम क्या है, आउटकम पे पूरे मार्क्स है. दैट इज द पॉइंट. सो यू हैव टू नो दैट नाउ दैट आउटकम कितना हो रहा. सारी स्टोरी आउटकम है. फल लगना चाहिए. हाँ इतना बड़ा आम का पेड़ है, और क्या है, एक भी आम नहीं, कोई फायदा है क्या. इतना बड़ा चीकू का पेड़ है, चीकू लगा क्या, एक भी नहीं. आउटकम. सो आउटकम बेस अगर करना है ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा इफेक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है टीचिंग की. बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़ाना पड़ेगा, इंक्विजिटिवनेस बढ़ाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनके साथ उनको कंटेंट को सोसाइटी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, उनको इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, उनको उनके प्रोफाइल को मजबूत करना पड़ेगा. ये सब करना पड़ेगा. और ये सब करने के बाद ही स्टूडेंट अपना सेटिस्फैक्शन सर्वे ठीक से देगा. तो देणारच नाही तो दे देंगे आपको 5 में से 2, नाहीतरी तो हे असतो ब्लाइंड असतो. स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे ब्लाइंड रहता. तो उसमें तो बच्चा लिख सकता फालतू कॉलेज अगर हमको कुछ भी एक्सपोजर नहीं दिया, हमको सिर्फ क्लासरूम में बिठा के रखा, एक के बाद एक क्लास लेते रहे, हमको समझा भी नहीं, कुछ भी बोल सकता. गेटिंग माय पॉइंट. सो फर्स्ट इज करिकुलम एस्पेक्ट्स फॉर 150 मार्क्स. कैसे डिलीवरी कर रहे हो आप. टीचिंग प्लान ठीक है, लेसन प्लान ठीक है, यूनिटाइजेशन ऑफ सिलेबस ठीक है, COPO मैपिंग है क्या, कोर्स आउटकम मालूम है क्या, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव समझते क्या, आपने एक पूरा सब्जेक्ट जो प्लान किया उसका आउटकम कैसे डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन होने के बाद वो आउटपुट डिज़ाइन होने के बाद वो एसेस कैसे होता है. यू नो all these minute things about teaching learning process is something which is so important. Getting my point? तो करिकुलम इतना आसान नहीं है. माला जी सब्जेक्ट में आला, मेरे को सिलेबस मिला, यूनिवर्सिटी ने बोला ये पढ़ा दो, मैंने जाके पढ़ा दिया. नो, वो पढ़ाने से बच्चे का कुछ भी भला नहीं होने वाला है. बस एग्जाम में थोड़े नंबर अच्छे आ जाएंगे और उसको मार्क अच्छे आ जाएंगे, पर बाद में नौकरी देने वाले सोसाइटी वाले हंसेंगे, अरे क्या तेरा 9 पॉइंटर मार्क्स, कुछ भी तो नहीं आता तेरे को, एक भी तो नौकरी नहीं लगी तेरे को. आउटकम एवरीबडी वॉचेस, all other stakeholders will watch on outcome. Third criteria, research, innovation and extension activities. Very, very important. क्या था? Research, innovation and extension. Promotion of research and facilities, 20 मार्क. ये क्या था? ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी के तो बहुत कम नंबर है इसको. रिसर्च मोबिलाइजेशन फॉर रिसर्च. You know, you have resources, whether you have resources or not, then how do you mobilize your resources. क्या क्या करते हो आप. आपके पास लैब है क्या, लैब के कनेक्शन है क्या, बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट अगर आपके मुंबई में दिल्ली के कोई कॉलेज के साथ टाई अप है क्या, आपके MOU है क्या रिसर्च लैब के साथ, आपके साथ इंडस्ट्री का टेस्टिंग होता है क्या. रिसोर्स मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मेरे को समझना पड़ेगा. फिर इनोवेशन इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता कि नहीं कॉलेज में. ये तो मतलब आपको ना सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर कॉलेज में इनोवेशन इकोसिस्टम डेवलप नहीं है, मतलब हर बच्चा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो फिर वो कहाँ पकड़ में आता है. प्री इंक्यूबेशन सेंटर होगा आपके यहाँ, तो वहाँ पकड़ में आएगा. इंक्यूबेशन सेंटर में पकड़ में आएगा. वो 2nd ईयर 3rd ईयर का बच्चा रिसर्च पेपर लिख रहा है, वहाँ पकड़ में आएगा. इनोवेशन, प्रोडक्ट बना रहा है, कोई प्रोसेस बना रहा है, कोई प्रोसीजर कर रहा है, कुछ नई चीज कर रहा है, कोई समाज के लिए कुछ नया मॉडल बना के लाया. कसं करून ऐसा कुछ भी कैसा कर लिया उसने जिससे कि एक आपकी कॉलेज में इनोवेशन इकोसिस्टम एस्टैब्लिश्ड है, ये समझ में आ रहा है. तो इनोवेशन इकोसिस्टम इज वेरी बिग. रिसर्च पब्लिकेशंस एंड अवार्ड्स. यस, डू यू पब्लिश रिसर्च पेपर्स रेगुलरली. साल में एक भी हो रहा है क्या, 1.5 साल में भी एक हो रहा है क्या, SCI हो रहा है कि नहीं, स्कोपस इंडेक्स हो रहा है कि नहीं, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स हो रहा है कि नहीं, ये सब है कि नहीं.
ये विल मैटर करेगा कि रिसर्च सही में किया कि अदरवाइज कोई काम का नहीं, अदरवाइज कोई काम का नहीं। रिसर्च पेपर्स, अवार्ड्स, कंसल्टेंसी को 20 मार्क दे रहे, ऑटोनोमस में तो 10 ही दे रहे, क्योंकि लोगों को मालूम है कंसल्टेंसी नहीं मिल पाती, और मिलने के बाद भी कोई 50,000 1 लाख की नहीं होना, 4 लाख से ज्यादा होना, 5 लाख होना, उसको बोलते कंसल्टेंसी। सो कंसल्टेंसी, व्हाट इज कंसल्टेंसी? It is the extrapolation of your knowledge which can reach out to the societal aspects and sectors where you can actually work. आपने किया वाला काम किसी के तो भी यूजफुल है, कोई इंडस्ट्री को यूजफुल हो रहा है, तो इंडस्ट्री बोलेगा मेरा इतना काम कर दो, मैं आई पे यू समथिंग। दैट इज द पॉइंट। मेरे को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी की कोई जरूरत है, वो जरूरत के हिसाब से मैं उसको काम करके दे रहा हूँ, काम करने के फिर वो मेरे को पैसे दे रहा है। मैंने किसी को, हमने तो कई जगह गया है, आई हैड बीन ट्रैवलिंग टू इंडस्ट्रीज, सो मेनी इंडस्ट्रीज, उनको मैं बोल देता हूँ सर मेरे को दो ना ये काम, बोले यार तुम तो टीचर हो, तुम क्या करोगे? नहीं मेरे को दे दो काम, मैं करके दूंगा बोलने के बाद वो देते मेरे को, एंड देन फिर उसका हमने नॉर्मल ट्रेनिंग का भी हम 2-2 लाख चार्ज करते हैं। ऑल ओवर इंडिया हम लोगों ने ट्रेनिंग किया, मैंने कम से कम 60 यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जाके मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाया है, और कम से कम 60 से 65 ही ऑलमोस्ट टीचिंग मेथोडोलॉजी जाके पढ़ाया। तो ये मतलब कोयम्बतूर, दिल्ली, उत्तराखंड से लेके तो चंद्रपुर, वर्धा, गोंदिया, बैंगलोर, दावणगिरे, कहाँ नहीं गए हम लोग। सो ये इतना ट्रैवल किया इसके लिए, क्योंकि वी चार्ज देम अ गुड अमाउंट विच इज व्हाट कंसल्टेंसी। मैं आपका ये काम करके दे रहा हूँ, इसमें मेरे को इतना खर्चा आएगा। अगर आपकी प्रपोजिशन में वैल्यू है, आपके प्रपोजल में वैल्यू है, अगर आपका कॉन्फिडेंस वो दिख रहा है कि इसमें 2-3 लाख दिए तो भी ये वसूल है, तो लोग दे रहे हैं। पीपल आर पेइंग, यू डोंट नो। मैनेजमेंट कोर्सेज में तो 25,000 रुपये 1.5 घंटे का भी कितने लोग दे रहे हैं। दे पे 25,000, चार्जेस फॉर 2 hours lecture is 50,000, and people are paying. I have been into training for last 25 years. तो मेरे को मालूम है कितनी इंडस्ट्रीज है। अरे LIC और ये सब लोग है ना, ये लोगों को भी अगर आप अच्छे से कुछ पढ़ा के आ जाओ, आपका नॉलेज यूज करो, इफ यू आर इनटू सोशल वर्क, इफ यू आर इनटू मैनेजमेंट, इफ यू आर इनटू प्रोसेसेस, इफ यू आर इनटू प्रोसीजर्स, इफ यू आर इनटू मैनेजमेंट हायरार्कीज, मेंटेनेंस, इसमें कहीं पे भी आप कुछ है और आप 30,000 रुपये मांगे, मिल जाएंगे एक लेक्चर का 25,000, क्योंकि आपका कंटेंट है, क्वालिटी रही तो पैसा बहुत है। सो इनोवेशन इकोसिस्टम, फिर रिसर्च, कंसल्टेंसी, देन एक्सटेंशन एक्टिविटीज, कोलैबोरेशंस। एक्सटेंशन एक्टिविटीज बहुत जरूरी है ना, किसको दोगे, किसी का तो काम का होना। आई टेल यू, वन ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम IIT चेन्नई, IIT मद्रास बोलते हैं उसमें, IIT मद्रास। सो IIT मद्रास, आई आस्किंग लाइक व्हाट एवर इज सैलरी, जो भी उसकी 3-4 लाख महीने, मतलब मे बी 45-50 लाख उसका पैकेज होगा रेगुलर, वो तो उसको मिलता है। आई आस्क हाउ मच कंसल्टेंसी यू अर्न। ही सेड यार 2-3 साल से बोले विवेक मेरा 40% कॉलेज कंट्रीब्यूशन एंड 30% इनकम टैक्स, ये दो काट के, बिलीव मी, 30% इनकम टैक्स एंड 40% कॉलेज कंट्रीब्यूशन काट के मेरे को 1.5 से 2 करोड़ रुपए मिल जाता साल का। 1.5 करोड़ to 2 करोड़ मिलता है कंसल्टेंसी। मतलब अपन ने अगर अपने आप को यूजफुल बनाने की कॉस्ट क्या मिलेंगे हम सोच भी नहीं सकते। बड़े बड़े CEOs की सैलरी भी आज 1 करोड़ नहीं है, और प्रोफेसर को 2-2.25 करोड़ मिल रहा है साल का। दैट इज द पॉइंट, क्योंकि मैं कर रहा हूँ ना, मैं काम कर रहा हूँ तो वो हो रहा है। IIT का खैर इट्स अ ब्रांड, IIT बोलने के बाद एक विश्वास तैयार हो जाता है। विश्वास तैयार होने से क्या हो जाता है, उनको देने में कंपनी भी डरती नहीं है कि जिन्होंने IIT का है। अरे पर IIT एक Day 1 के लिए लेबल ठीक है, उसने अगर काम सही नहीं किया तो वो दूसरे IIT जाएंगे, प्राइवेट जाएंगे, फिर कहीं और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जाएंगे, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जाएंगे। तो क्वालिटी और ब्रांड आपको एक दिन चलेगा, उसके बाद आपको एक्चुअल आउटकम ही देना पड़ता है, एक्चुअल रिजल्ट्स देने पड़ते हैं। सो कंसल्टेंसी हैज बिकम so important. You have raised hand, Nilima madam. You want to say something, Nilima madam? You can switch on the mic and say also. So the point is consultancy.
कैसे मिलेगी यार? लोगों को मिल रही ना। आपको जो भी आता होगा उसकी मार्केट वैल्यू रहना चाहिए। बच्चों को पढ़ा रहे आप, फाइन, बच्चों को पढ़ा रहे, आपने बीटेक किया, एमटेक किया, एमए किया, एमकॉम किया, पीएचडी हो गए, पीएचडी के बाद 10 साल एक्सपीरियंस हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन जो नॉलेज आपने गेन किया, जो स्किल्स, जो कॉम्पिटेंसीज आप में आ गई पिछले 10 साल में, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, आर्किटेक्चर, लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो भी होगा फील्ड आपका, उस फील्ड में हमको एग्जैक्ट मेरी कॉम्पिटेंसीज क्या है जो यूजफुल है, एग्जैक्ट क्या स्किल्स है जो इंडस्ट्री के काम के है, सोसाइटी के काम के, एग्जैक्ट कौन सा नॉलेज ऐसा है जो किताबों में नहीं मिल रहा, जो मेरे पास एकदम मेरा स्पेशल नॉलेज है। ये जब तक मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ ना, तब तक नहीं मिलता। सो एक्सटेंशन एक्टिविटीज एंड नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन। ये सब करने के लिए कोलैबोरेशन तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये कौन सा हो गया? सो फर्स्ट इज करिकुलम, सेकंड इज टीचिंग लर्निंग। अब टीचिंग लर्निंग में भी ना आपका लेसन प्लान होता है, आपका टीचिंग प्लान होता है। टीचिंग प्लान में क्या लिखा रहता है? डेट, डे, टॉपिक कोड, यूनिट एंड सम स्मॉल कंटेंट, राइट? लॉ ऑफ दिस एंड दिस एंड टू इलस्ट्रेशन, और उसके सिलेबस, उसके किताब जो भी लिखा हुआ, उसके आगे आई प्रपोज अनदर 7-8 कॉलम्स, सेम आपका जैसा टेबल बना हुआ है ना लिसन प्लान का और टीचिंग प्लान का। तो उसमें क्या डेट, टाइम, मिस क्लासेस, ये वो सब रहता है। उसमें 2-3 कॉलम ये होना चाहिए, विच बुक यू आर गोइंग टू यूज, एवरी क्लास यू शुड रेफर न्यू बुक्स, which YouTube video online content you are going to share, which teaching media you are going to use, which teaching method you are going to use, which books you are going to recommend, which moral story for 1 minute at the end of the class you are going to tell, what ethics you are indirectly going to imbibe in them, in turn making them socially responsible। ये सब करना पड़ता मेरे को 60 मिनट। तो 60 मिनट में मात्र 50 से 52 मिनट ही पढ़ाई, लेकिन 7-8 मिनट क्या करेंगे आप? एक मॉरल स्टोरी, ट्रू स्टोरी। लास्ट ईयर एक बच्चे ने गैदरिंग में मारामारी हो गई थी, और वो मारामारी हो गई तो वो बच्चा आया दौड़ के, मैंने उसको पकड़ा, और सीनियर बच्चा था, उसने पूरा स्ट्रीमलाइन कर डाला, पूरा माहौल ठंडा कर दिया और अच्छे से फैशन शो हो गया। सी दिस इज व्हाट टीम वर्क, दिस इज पेशेंस, दिस इज राइटर्स कंडक्ट। 2 लोग दारू पी के आ गए थे कैंपस में, उनको भगाया मार के, पुलिस कंप्लेंट की, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज राइटर्स कंडक्ट, दिस इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये सब अपन अपने लास्ट ईयर के बच्चे का समझाओ उसको। स्वामी विवेकानंद और हेडगेवार और ये से बाबा अम्बेडकर और ऐसे कुछ तो बड़े बड़े नाम देके नहीं होता। अब्दुल कलाम तक के हम रिलेट नहीं कर पाते। वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे। वो एग्जाम्पल कैसा उनका, लोकमान्य तिलक, सावरकर, अरे बाप रे क्या भयानक एग्जाम्पल्स है। दे कैन नॉट बी योर रिलेटेबल रोल मॉडल्स। मैं हमेशा बोलता हूँ इनको पूजा करिए, इनके चरित्र पढ़िए और इंस्पायर होते रहिए। लोकमान्य तिलक थ्रू आउट मैथ्स गोल्ड मेडल, सावरकर, महात्मा गांधी लंदन से वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर हो गए थे। चमत्कार है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे, कम्युनिकेशन स्किल हैवॉक था, क्या क्या नहीं था, लेकिन उनसे हम रिलेट नहीं कर पाते। मैं उनको बोलूं, आपको बोलूं कि चलो गांधी आपके रोल मॉडल बन जाए, आप नहीं कर सकते। डू यू एग्री टू दिस और नॉट? हम इनको रोल मॉडल नहीं बना सकते। गांधी जी क्या करते थे, 100, 200, 500 लोगों को आवाज देते थे कि इधर आओ, मेरे पीछे खड़े रहो, अब गवर्नमेंट की पुलिस आएंगी, आपको सर फोड़ेंगी, फिर आपको जेल में डालेंगे, चलो चलो सब। क्या कन्विंसिंग पावर होंगी, क्या भयानक कम्युनिकेशन स्किल होगा, कौन सी भाषा में बोलते होंगे। आपको बताओ, कोई बोले तो हमको तो कोई धूप है क्या, हम देखते, एसी है क्या, पहले ठीक है यार, किसी ने मेरे को बुलाया, आपको मेरे को हमको किसी भी बुलाया, यार वहाँ भाषण है, यार एसी है क्या वहाँ पे, यार वो गर्मी में बैठना नहीं होता यार, लंबा तो नहीं चलेगा ना, 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा ना। हमको किसी ने, हमारे दोस्त ने, बॉस ने भी बुलाया तो हमको इतनी कंडीशंस रहती, एसी है क्या, शाम को नहीं आता मैं, दोपहर में है क्या, क्लासेस के टाइम पे है क्या, 50 क्वेश्चन। एंड व्हाट महात्मा गांधी यूज्ड टू आस्क जनरल पीपल, जिनको वो पहचानते नहीं थे, सबके सब सत्याग्रह, आ जाओ। और आने के बाद क्या होगा, 5 मिनट बाद पुलिस आएंगी, सबके सर फोड़ेंगी, हाथ पैर तोड़ेंगी और डम करेंगे, एक ट्रक में डाल के आपको जेल में डालेंगे, जेल भरो आंदोलन। और लोग आते थे यार, 1000 लोग आते सर फोड़ने, अपना हाथ पैर तोड़ के उनको जेल में डाल देते थे। क्या कन्विंसिंग पावर होगा, तो ये वगैरह हमारे टीम, हमारे लिए रोल मॉडल हम बन ही नहीं सकते।
सावरकर का बताते, लंदन में जब थे स्वतंत्र वीर दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी, उसके ऐसी कोई नहीं है। अभी मैं लास्ट मंथ आई वाज इन अंडमान एंड आई कुड सी व्हाट लेवल ऑफ पेट्रियोटिज्म पीपल कम अप विद वहाँ पे, जब अंडमान में जब उनके जेल के जो शो वगैरह होता है वहाँ पे, भयानक है। तो वो क्या करते थे, वो जब फर्स्ट ईयर में थे, सावरकर जब फर्स्ट ईयर में थे, तो वाइस चांसलर ऑफ लंदन स्कूल ऑफ लॉ को अगर कुछ ऑकवर्ड डिमांड करनी है बच्चों से कि वो शॉर्ट नोटिस चीज करना है, जो बच्चे एकदम बवाल कर देंगे, बच्चों में हमको नहीं करना है, ऐसी डिमांड जो रहती थी, वाइस चांसलर सावरकर को शाम को बुला लेते थे, बेटा विनायक, यू हैव टू टॉक ऑन माय बिहाफ एंड कन्विंस स्टूडेंट दैट वी हैव टू गेट इट डन, एंड यू विल नॉट बिलीव, नेक्स्ट डे first year student Vinayak Damodar Savarkar used to appeal all students, higher class students and lower class students, and काम हो जाता था। वाइस चांसलर के मुंह से नहीं सुनते बच्चे, सावरकर के सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल पे काम होता था। दैट इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। बट नाउ यू नो दीज आर दी पर्सनालिटी ट्रेट्स। ये बहुत इनहेरेंट होता है, अंदर से होता है, कई जन्मों के पुण्य के बाद आता है ये सब काम। वक्ता दस सहस्रेषु बोला है, 10 सहस्त्रमध्ये एक वक्ता असतो। सो दॅट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, द काइंड ऑफ patriotism, the kind of resilience, the kind of patience, I mean, the very different. So you cannot just get into like वो हम उनको रोल मॉडल नहीं बना सकते। हम अब्दुल कलाम सर से इंस्पायर होते रहते, वाह क्या पढ़ाई की, क्या भयानक गरीबी परिस्थिति से लड़ के आगे आए। हम ये बोल सकते, लेकिन आपको मैं बोल दूं कि किसी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई करो और 2 कपड़े जोड़ी में जिंदगी निकाल दो, नहीं, हम नहीं कर सकते। पर हमको इमीडिएट जो रोल मॉडल्स देने हैं, हमको आपकी बहन, आपका बड़ा भाई, आपका सिबलिंग, आपके टीचर्स, they can be your role model. You can tell, last year there was a student, he used to study, he was from very poor background, he used to study day and night, he scored this, he got IPS cracked, he is now commissioner of police of Nasik and Mumbai and Delhi. This is like relatable. उसने मेरी कॉलेज की, अपनी कॉलेज का लास्ट ईयर का बच्चा IAS ऑफिसर क्रैक कर लिया, ये हमारा 3 साल पहले का बच्चा, ये मेरा छोटा भाई। That is how it is relatable. So you have to tell such stories for 2-3 minutes. Is another agenda of your class. ये सब करना पड़ता, तब जाके वो असली टीचिंग मेथड इम्पैक्टफुल होती है। सो करिकुलम एस्पेक्ट्स 150 मार्क्स, टीचिंग लर्निंग 300 मार्क्स, रिसर्च इनोवेशन 150 मार्क्स। नाउ फोर्थ क्राइटेरिया इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज। खैर इसमें आई डोंट लाइक थिंक कि आप और मैं कुछ कर सकते। इट इज द मैनेजमेंट डिसीजन दैट हाउ नीट, क्लीन, रिच लाइब्रेरी मैनेजमेंट कैन बाय, and what kind of IT infrastructure, what higher end computing machines you have, whether they are AC or not, whether they have cushioned and comfortable chairs or not, ये सब पैसे का मामला है। ये इसमें हम अपना नहीं पढ़ेंगे, ये सारा का सारा हम लोग टेबल दे देते मैनेजमेंट को, भैया आपको नैक करना है, ये सब आपको अच्छे से रहना पड़ेगा, है ना। सो ये सब करना है आपको, ये कर सकते हैं हम लोग। दैट यू कैन डू, पर बाकी कुछ नहीं कर सकते। सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो 100 मार्क है वो मैनेजमेंट पे छोड़ दीजिए, यू एंड मी नीड नॉट हैव टू वरी। नेक्स्ट, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज, आर दे ट्रैवलिंग, आर दे पार्टिसिपेटिंग इन IITs एंड IIMs एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। कितना बच्चा, मेरे यहाँ के 1-2-3 बच्चे थे, वो 3 साल कोरिया में इंटर्नशिप कर रहे थे, फुल्ली पेड। तो कोरिया में 3 साल से जा रहे थे, हर समर में उनको कोरिया की कोई यूनिवर्सिटी बुलाती थी विद टिकट, अकोमोडेशन एंड एंटायर नो फीस। ये सब कर रहे क्या, कोई TCS में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। यस प्रभात सर, वांट टू आस्क समथिंग? यस सर, थैंक यू फॉर सर, मेरा ये सवाल था कि मैंने अपने कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक 5 डे वर्कशॉप शुरू की है सर। 200 स्टूडेंट्स उसमें जुड़ चुके हैं।
एंड सर गांव के बच्चे हैं सर बिल्कुल, जिनको लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन सर 10-15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, दे आर मेकिंग रियली गुड वेबसाइट्स एंड गेम्स हम्म। एंड एप्स एंड दे आर आल्सो सेलिंग देम। तो सर उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल सकती हैं सर? जैसे आपके स्टूडेंट्स को बाहर बुलाया गया कोरिया में, मतलब उनको इंटर्नशिप सर मिली। सर हम लोगों का मतलब इग्नोर हो रहे हैं, मतलब काम अच्छा हो रहा है लेकिन कुछ रिकॉग्निशन इतना नहीं है यू सर यू अभी आर तक। फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी सर? सर महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर एंड माय कॉलेज इज गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़, किशनगढ़, यस राजस्थान। यस, कल अपनी बात हुई। नहीं, तो इसमें सर क्या है ना, एक आदमी को आपको ना, मतलब आई ऑलवेज टेल देम कि एक व्यक्ति को, अच्छा गूगल करने वाला बंदा, अच्छा एआई समझने वाला टीचर को आपको ये फैसिलिटीज और प्रोविजंस ढूंढने में लगा दीजिए। इतने प्रोविजंस रहते सर, इंडो यूके प्रोजेक्ट चल रहा है, इंडो अमेरिका चल रहा है, इंडो चाइना चल रहा है, इंडो जापान चल रहा है, इंडो इजराइल आज भी चल रहा है। इतने हैं ना, हमको सिर्फ ये सब फॉर्मेट्स डाउनलोड करके उसमें अपने बच्चे कहाँ बैठे। अभी आप जो बता रहे हैं ना एआई में कुछ काम कर रहे हैं, एआई के लिए तो सर अभी इंटरनेशनल समिट जो हुआ था, जहाँ खैर वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले का बहुत बवाल हो गया, लेकिन वो वहाँ पे कितने ही फंडिंग एजेंसीज थी सर। एआई समिट जो दिल्ली में हुआ, वहाँ अगर अपने बच्चों को भेजा रहता, या आप कई इंडस्ट्रीज है जहाँ पे इंडस्ट्री पैसे देने को तैयार है, फंडेड प्रोजेक्ट देने को तैयार है, तो वहां से बच्चों को पैसा मिल सकता है। सीएसआर फंडिंग अभी बहुत सारी एआई के डोमेन में जा रही है। क्लाउड आने के बाद इतना ज़्यादा एआई डिपेंडेंट आईटी इंडस्ट्रीज हो गई है कि उनको चाहिए कि बच्चे एआई एक्सपर्ट्स रहे, ताकि उनको नौकरी मिलते ही वो लोग एआई में अपना काम शुरू करें। ये सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम है कि हमको ना थोड़ा सर्फिंग करना पड़ता रिगरसली। आपके एरिया के लिए, आपके रीजन के लिए, प्योर राजस्थान के लिए बहुत सारे फंडिंग होंगे, बच्चों के लिए फंडिंग रहते, टीचर को रहता जिसमें बच्चे फंड हो जाते, कुछ ना कुछ, मतलब इतनी सारी फैसिलिटीज है, वो ब्रांच के लिए स्पेसिफिक रहते हैं। तो ऐसा हमको, मतलब ना अवेयरनेस ही मिसिंग है। आई मीन नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट क्या हो जाता है कि हम लोग ढूंढते नहीं, बच्चों को भी समझ में नहीं आता कि इसमें भी पैसा मिलता है। आपको मैं बताऊं, हमारे यहाँ एक टीचर आए थे अभी, ही सेड यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तीनों जगह पे दे आर दी कॉस्टलीस्ट कंट्री टू ट्रैवल। आई टेल यू, यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। टिकट ही 1.5-2 लाख है, एक एक दिन का खर्चा 15-20 हज़ार रुपये आता है वहाँ रहने खाने का। वहाँ पे मालूम पेट संभालने के लिए मांग रहे इंडियंस, क्योंकि अपने इंडियंस है, वो 2 महीना स्विट्जरलैंड जा रहे वहाँ से वेकेशन के लिए समर्स में। अब 2 महीना उनके यहाँ 2 कुत्ते हैं, 2 बिल्ली है, एक घोड़ा है, एक क्या है जो भी है, उनको ना उनका संभालने के लिए दे आर रेडी टू पे टू एंड फ्रो टिकट्स। आपका फ्री, इतने बड़े बंगले में आप रहोगे, वहाँ पे टेक केयर करोगे, सब आपका डील हो जाता है, और वहाँ फिर आप 2 महीने में 4-5 सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। वो आपको डेली अलाउंस देते, कहना खाना पीना, उसमें आजू बाजू की यूनिवर्सिटीज जाके आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इतनी फैसिलिटीज रहती ना, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कौन कहाँ कितना। अभी इंडिया, अभी आपको मालूम है कि नहीं मालूम, ब्रिक्स जो फोरम है ना, यू नो ब्रिक्स फोरम, इस यस बार सर। इंडिया चेयरमैनशिप आई है, मोदी जी इज चेयरिंग दैट। हर साल 21 कंट्री ज्वाइन हो गए, पहले ब्रिक्स ने 5 था, ब्राजील, चाइना, इंडिया, वो वही वाला सब फोरम 5 थे, 5 का भी 21 कंट्री हो गए, 21 कंट्रीज का एवरी ईयर चेयरमैन चेंजेस। तो इस बार चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स फोरम, एंटायर 21 कंट्रीज का जो कंसोर्टियम है, उसके फोरम के चेयरपर्सन इस टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर है। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहने से ये पूरा साल ब्रिक्स में भी बहुत पैसा है। नागपुर में चालू है, नागपुर में 6 दिन का ट्रांसपोर्ट वाला अभी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, फूड, ट्रांसपोर्ट, न्यूक्लियर टॉपिक वाइज चालू है। दिल्ली में चालू है, 27, 28, 29 से दिल्ली में है, शायद मैं भी जाऊंगा। नागपुर में भी चालू है ट्रांसपोर्ट वालों का, जिसमें मेरा कोई संबंध नहीं, बट देयर आर फील्ड वाइज दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो यहाँ पे भी जा सकते हैं हम लोग। सार्क कंट्री वालों के पास फंडिंग है, यूरोपियन यूनियन वालों के पास फंडिंग है। तो क्या होता है ना कि हम लोग कितना स्पेसिफिक गूगलिंग करते, उसके ऊपर बच्चों को बहुत बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। मैं बता रहा हूँ, मैं क्विक हिल वाला ऐसी दोस्ती में मिल गया था। क्विक हिल मालूम है, क्विक हिल आपको टोटल इंटरनेट सिक्योरिटी जो मिलता है, जो हम यस सर। एंटीवायरस यूज कर रहे हैं, उनके जो ओनर है वो उनके ओनर है इसमें, सॉरी, नासिक के हैं।
तो वो काटकर सर एंड काटकर मैडम क्विक हिल फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। तो काटकर मैडम से कहीं मुलाकात होगी तो बोला मैडम आपका इतना बड़ा करोड़ों का बिजनेस है, आपका CSR, बोले हाँ हमारा है ना क्विक हिल फाउंडेशन। सबका देखो फाउंडेशन रहता है, क्विक हिल का भी फाउंडेशन है। जो फाउंडेशन में उनको अभी क्विक हिल को समझे होगा 1-2 करोड़ रुपए खर्चा करना, एंड दे हैव एजेंडा। इसमें बच्चों को बहुत पैसा मिल जाता है। मैंने जैसे मैं 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 6 years बैक आई जस्ट मेट क्विक हिल फाउंडेशन की एक लेडी, बोले हमारे ऐसा है, काटकर मैडम से आपसे मीटिंग कराती हूँ। मेरी काटकर मैडम से मीटिंग हुई एंड शी सेड कि अरे हमारे यहाँ ना साइबर सिक्योरिटी पे बहुत पैसा, हमको एजेंडा वो है, बच्चों को, बूढ़े को, एडल्ट को, आम जनता को, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, हमको साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस करना है। सो दैट वाज देयर, सो दे करना है तो मतलब क्या करेंगे, बोले वी विल पे योर स्टूडेंट्स, वी विल फर्स्ट टीच योर स्टूडेंट्स। तो उन्होंने हमारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल 4 साल के सिलेक्ट बच्चों को लिया, 50 बच्चों को ट्रेनिंग दिया, क्योंकि ने ट्रेनिंग दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर वही ट्रेनिंग हमने हमारे बच्चों ने स्कूल्स में जाके दिया, जिसके लिए उनको पेट्रोल अलाउंस, रेम्यूनरेशन, खाना पीना, प्लस वो जो लेक्चर लिए स्कूल्स में जाके उसके भी पैसे मिले। इस चक्कर में कॉलेज को भी 10-15 लाख साल के मिल जाते। तो ये ऐसे हर फाउंडेशन के पास है, रिलायंस फाउंडेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन, हर जगह है ना। पर क्या होता है कि हम लोग वो स्कैन नहीं कर रहे ना पूरा। विप्रो का तो बाप रे, विप्रो यूज टू पे, मतलब मैं आज से कितने साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2004 में मैंने विप्रो में लेक्चर लिए, 25,000 रुपीज पर डे देता था टीचर को। उस जमाने में 1,000 रुपये भी नहीं मिलते थे अपने को ऐसे गेस्ट लेक्चर्स के, वो 25,000 देता था विप्रो। क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग, बोले टीचर का ट्रेनिंग दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। टीचर ही समाज गढ़ाता है, टीचर ही नेक्स्ट पीढ़ी को ओके करता है, टीचर ही बच्चों को इंस्पिरेशन देता, मोटिवेशन देता। टीचर के लिए कोई भी अमाउंट छोटी चाहिए। 10,000 रुपये देते थे पहले दिन के विथ फ्लाइट टिकट्स, बाद में 25,000 देते। क्योंकि बिलीव, तो ये सब है। तो ऐसे कई जगह पे कई सारे प्रोविजंस है जहाँ पे हमको पता चलता कि ये सब पैसा बच्चों के लिए, जहाँ बच्चा एक्चुअल ग्रो हो रहा है। स्टूडेंट प्रोग्रेशन, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड एक्टिविटीज, एलुमनाई एंगेजमेंट। यस, आपका एलुमनी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आज आपको नौकरी नहीं लगी बच्चे को, लेकिन उसको अगले 3 साल में तो लग गई होंगी। आपके कॉलेज का जो 10 साल पुराना बच्चा है वो तो कोई बड़ा आदमी होगा, उनको जवाबदारी दो कि यार यू आर पास्ड आउट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, यू हैव टू कंट्रीब्यूट योर एक्सपर्टीज इन माय कॉलेज। उनको प्लेसमेंट कराओ, उनको मदद करो, उनको ट्रेनिंग दो फ्री में। करते बच्चे, एलुमनी एंगेजमेंट बहुत स्ट्रांग रहता है। सो वी कैन डू दैट। सो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, एलुमनी एंगेजमेंट, एलुमनी को ऐसा छोड़ नहीं सकते, उनको बहुत प्यार मोहब्बत से उनको पार्टी करो। मैं तो हमारे कॉलेज में तो हम लोग, मैंने स्टार्ट किया था, वी गो टू देयर प्लेसेस, क्योंकि बच्चों को छुट्टियां नहीं मिलती, फ्लाइट के टिकट इतना महंगा, बंगलोर, दिल्ली, पुणे से यहाँ बुलाना, एक नाइट के लिए, एक इवेंट के लिए बुलाना नहीं होता। व्हाट वी डिड, बंगलोर के 2 बच्चों को प्रेसिडेंट बनाया बंगलोर चैप्टर का। और बंगलोर चैप्टर के जो प्रेसिडेंट बना, 2 लड़का लड़की, 2 लड़के बना दिए, एक टीम बना लिया। उनको बोला कि आप प्रियदर्शनी के सारे बच्चों को ढूंढो वहाँ पे। उनके मिल गए व्हाट्सएप पे, 200 बच्चे मिल गए 15 दिन में। 200 students of my college were working in Bangalore. Then I said, arrange a party, Saturday night party करो हमारे साथ, we will talk, have discussions। उनको spouses के साथ भी बुलाओ, और अपन लोग हम लोग आते, यहाँ से हम 3-4 टीचर गए। वो 200 लोग अलग अलग गाँव से फ्लाइट से यहाँ आना इम्पॉसिबल था। आए रहते 10, 20, 25 मोटिवेटेड, सब नहीं आए रहते। अब हम लोग 3 टीचर बैंगलोर गए, उन्होंने सब बुक करके रखा था, एक अच्छा होटल बुक करके रखा था, एक अच्छा बैंक्वेट हॉल, डिनर, भाषण, प्रेजेंटेशन दी हमने कॉलेज की, सब समझा दिया। इट वाज सच अ ग्रैंड थिंग। देन वी डिड इट इन हैदराबाद, वी डिड इट इन पुणे, वी डिड इट इन मुंबई। मैंने तो स्कॉटलैंड गया था, वहाँ पे मेरे को 6 लड़के मिल गए थे। आई वॉज इन स्कॉटलैंड, एडिनबरा, देयर आई कुड कनेक्ट 6-7 alumni there, but they have such a high regards for college and they will pay you, I tell you। वो पैसा देते आपको पक्का देते, पैसा देते, फैसिलिटीज देते। they can be mentors to your institution, they can be trainers to your students। बहुत फायदा है एलुमनी का। हमने तो बहुत, मतलब एलुमनी से मैंने बहुत ही किया। सो स्टूडेंट एंड एलुमनी बहुत इंपॉर्टेंट है 100 मार्क्स के लिए। गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, अब ये भी थोड़ा, इसमें जो स्ट्रैटेजीज है वो तो मैनेजमेंट के, लेकिन प्रिंसिपल और मैनेजमेंट और HODs को सजेस्ट तो अपने को करना पड़ेगा कि सर एम्पावरमेंट नहीं हो रहा। फैकल्टी एम्पावरमेंट स्ट्रैटेजीज क्या है? डू दे पे ऑल 6 months मैटरनिटी लीव से लेके
तो उनको एजुकेशन लीव से लेके उनको पेड लीव है क्या, ये है क्या, वो है क्या, कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए पैसे मिलते कि नहीं, अच्छा पेपर पब्लिश किया तो उसका कोई रिवॉर्ड है क्या, कुछ इंसेंटिव है क्या, कुछ एम्पावरमेंट की क्या है। उसने पेटेंट कर लिया तो आप उसको कुछ तो कंट्रीब्यूशन दे रहे क्या। लेकिन आर कॉलेज भी एक टोकन हम करती है, जिसका भी पेटेंट हो गया, ग्रांट हो गया, तो वी पे देम 15,000, ताकि उसको भी लगता ना यार उसने भी 50,000 40,000 खर्चा किए रहते, तो उसके अगेंस्ट उसको 15,000 हम इंसेंटिव दे देते। रिसर्च पेपर अच्छे जर्नल में कर दिया, वी पे देम 3,000 to 5,000 रुपीज। एनपीटीएल कोर्सेज की पूरा फी हम वापस कर देते। आपको साल में 4 एनपीटीएल रजिस्टर करना है, कर लीजिए, वी विल पे फीस। दिस इज फैकल्टी एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स, फैकल्टी एम्पावरमेंट स्ट्रेटेजीज, 30 मार्क्स है उसमें। इंस्टीट्यूशनल विजन एंड लीडरशिप, ये इस पे भी आपको ही काम करना पड़ता है। आपको उसको प्रोजेक्ट, आपको प्रोग्राम आउटकम्स, पीईओज, इंस्टीट्यूट विजन मिशन एंड डिपार्टमेंट विजन मिशन, उनका अलाइनमेंट, उनका मैपिंग, इंस्टीट्यूट मिशन वर्सेस डिपार्टमेंट मिशन, मैपिंग, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स, बहुत सारी चीजें रहती है। ये सबका फ्लो सही हो रहा है कि नहीं, विजन टू विजन मैच हो रहा है कि नहीं, मिशन से कोर्स आउटकम मैप हो रहा है कि नहीं। विजन में बड़ी बड़ी बातें कर दिया, कोर्स आउटकम में तो कुछ भी नहीं दिख रहा। इसका मैपिंग कर रहे कि नहीं, इसको सोच के साथ बनाया है कि नहीं बना है, पुराना है, 4 साल पहले कुछ फालतू बन गया था, अभी रिलेवेंट नहीं है, तो उसको चेंज कर रहे कि नहीं। चेंज करते वक्त आप स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करके उनका ओपिनियन लेके उनके हिसाब से कर रहे कि नहीं। दीज आर दी स्ट्रैटेजीज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ये तो खैर आपके जो फाइनेंस ऑफिसर्स होंगे कॉलेज के, उनके पास सब रहता है, ऑडिटेड बैलेंस शीट, ये वो। इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, IQAS हमारे पास जो सैलरी थी वो कैसी काम कर रही है, उसमें हर क्वालिटी को तवज्जो दिया जा रहा है कि नहीं, हर एक को उतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि नहीं, उसका असेसमेंट हो रहा है क्या, उसका रेगुलर इंटरवल में उस पर बात हो रही कि नहीं। कम है तो क्या करते हो, ज़्यादा है तो क्या करते हो, ज़्यादा है तो इंसेंटिव देते हो, प्राइज देते हो, अवार्ड देते हो, फेलिसिटेट करते हो, कम है तो उसको नोटिस देते हो, मेमो देते हो, शोकॉज देते हो। यार नॉन परफॉर्मिंग टीचर थोड़ी चाहिए हमको जो भी है भैया काम करें, काम नहीं कर रहे तो उसको एक बार का अंडरस्टैंडिंग देना पड़ेगा, एक बार समझाना पड़ेगा, एक बार फिर नोटिस दे देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन मांगना पड़ेगा, फाइनली उसको बोलना पड़ेगा भैया तेरे जैसे लोग हमको नहीं चाहिए, सॉरी थैंक यू। क्योंकि ऐसे निकम्मे लोग रख के कोई काम का नहीं है। पहले टीचर का मैं आज की तारीख तो वो टीचर अगर नॉन परफॉर्मिंग रहे तो खत्म है। सो इंटरनल क्वालिटी चेकअप कैसा हो रहा है, उसका सिस्टम कैसा हो रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। एंड लास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, this is very close to my heart, it is very innovative, institutional values and social responsibilities। ऐसा क्या है जो समाज आपके प्रति देखता है, what are those initiatives, what are those qualities, what are those benefits you provide to the society in general। वृद्धाश्रम में जा रहे हो क्या, रास्ते साफ कर रहे हो क्या, गरीबों में कुछ स्कूल मटेरियल बांट रहे हो क्या, किताबें फ्री दे रहे हो क्या, मतलब क्या कर रहे हो आप। हाउ योर इंस्टीट्यूशन एज एन important organization of the society is contributing to the growth of society, to the how they are making efforts to address the problems of the society. This is something so important. So institutional value system क्या है आपकी, क्या संस्कार है, क्या वैल्यू है, क्या मिशन है, क्या विजन है, क्या है, क्या पर्सपेक्टिव प्लान क्या है आपका, क्या बोलता है। इन्हें नहीं मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया तो मैं समाज के लिए ये कर लूंगा, 4 बच्चे हर साल फ्री पढ़ाऊंगा, 50 बच्चों को फ्री स्टडी किट, बुक्स, बैग दूंगा। व्हाट इज दैट 1 2 3 4 5 which can be counted as social responsibility towards this society. It's very very important। 50 मार्क है लेकिन you have to be distinctive also। So 50 मार्क किस पे है, institutional value system and social responsibility। I mean, you know, you are here in this society, you are part of society as a teacher, as a student, as a management, as an academic administrator। It is what impact you are going to make
on society, on industry in general, that will count. 50 marks are earmarked. See, हर बार मेरे को ये मार्क बोलना अच्छा भी नहीं लग रहा है यार, मार्क के लिए थोड़ी हम कॉलेज बन रहा है। हमको एक ऐसी व्यवस्था रहे, एक ऐसा संस्थान रहे, एक ऐसा महाविद्यालय रहे जिसके तहत एक संस्कारों का एक मैंडेट रहे और उसके तहत वो सब चलता रहे। यार ये थोड़ी होता कि मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये टीचर ये करता नहीं। यहाँ मेरे यहाँ प्रार्थना होती तो होती, यहाँ रोज नेशनल एंथम कॉमन बोला जाता है तो जाता है, यहाँ रोज ये होता है, ये वो होता है। यहाँ हर हफ्ते एवरी सैटरडे 2 घंटा फ्री में हम हमारे बच्चे जाके झोपड़ी में पढ़ाते हैं, स्लम्स में जाते हैं। ये मेरा वैल्यू सिस्टम है, मेरा ये मेरे इंस्टीट्यूट के संस्कार है, ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा रिकॉग्निशन है इन द सोसाइटी, मेरी पहचान है। ये सब है यार, अब ये तो करना पड़ेगा। इस पे 50 मार्क दे रहा है और ये बहुत सीरियसली करना चाहिए। लोग इसमें भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बाजू के कॉलेज ने क्या किया, गरीबों में जाके चॉकलेट बांटा। ये कोई तरीका है क्या? हम कॉलेज है, हम कोई करोड़पति वो बिजनेसमैन नहीं है, चॉकलेट बांटेंगे, पेड़े बांटेंगे, मिठाई बांटेंगे। मिठाई बांटने थोड़ी बैठे हम लोग, हम फ्री पढ़ा सकते हैं, हम लाइब्रेरी की पुरानी किताबें उनको गिफ्ट कर सकते हैं, हम हमारे तरफ से कुछ कर सकते हैं, हम एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो मेरे को करना है। अगर हम वो सब नहीं कर सकते तो क्या कर सकते? दैट इज द पॉइंट। सो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे यहाँ ऐसी कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिसमें कि हम हफ्ते में एक दिन बच्चों को एक सोशल सेक्टर में जाके काम करने भेजते हैं। बहुत अच्छी डिस्टिंक्टिवनेस बेस्ट प्रैक्टिस है हमारे यहाँ। नेशनल एंथम बिल्कुल बोले बिना क्लास में नहीं जा सकते, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है हमारे यहाँ। हर बच्चे के बर्थडे को एक पेड़ लगाते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है हमारे यहाँ। हर टीचर के बर्थडे के दिन 4 पेड़ लगाते हैं, टीचर कंट्रीब्यूट करता है, बहुत अच्छी बात है। तो करना पड़ेगा ना। डिस्टिंक्टिवनेस क्या है, आपकी इंस्टीट्यूट की पहचान क्या है, क्या ही कर लेते हो आप जिसमें कि आप संस्कार क्रिएट कर रहे हो, एक आदर्श निर्माण कर रहे हो समाज के लिए। ये शिक्षण संस्थाएं ऐसी नहीं होती, दुकान नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इंडस्ट्री नहीं है मेरी। हमारे यहाँ बच्चे निकाल रहे हैं और ह्यूमन रिसोर्स है हमारा। कोई स्कूटर नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं मेरी एक व्यवस्था है जिसमें से ह्यूमन रिसोर्स बनता है। वो इंटेलेक्चुअल है, वो इंटेलिजेंट है, वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है, वो मॉरली इथिकली स्टेबल है, वो पेट्रियाटिक है। हमको वो क्रिएट करना है ह्यूमन रिसोर्स। इसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनको डालना जरूरी है। इसके लिए उनको एक्सपोजर की जरूरत है कि इस समाज ने मेरे को दिया, मेरे को समाज को वापस करना है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस, ये भी वही है। 100 मार्क जो है ना 7th वाला, बहुत मेरे को दिस इज अमेजिंग। इन्होंने किया बहुत सही है। अब इसको बस आपने कितना सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो वो सब उस पर है। ये क्राइटेरिया तो आपको पता ही होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। मैट्रिक्स होता है, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैट्रिक्स होता है इसमें। तो क्राइटेरिया 7 है कि इंडिकेटर्स 34 हैं, कि इंडिकेटर्स 34 है और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रहता है। तो क्वालिटेटिव जो है वो कमेटी फिजिकली आके चेक करती थी, पुरानी बात बता रहा हूँ, अब नहीं है। और क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स जो होता है वो डीवीवी, डेटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन सॉफ्टवेयर थ्रू होता था। दैट यूज्ड टू क्रिएट अ डीवीवी एंड हमको 2 दिन में डॉक्यूमेंट्स मांगते थे, हम लोग सबमिट करते थे। इफ दे आर फाउंड ट्रू विल गेट फेच मार्क्स। 70% क्या था, 70% असेसमेंट वाज क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स, QNM। मालूम है सबको ना, QNM एंड QLM। सो QNM जो है वो क्वांटिटी, 12 टीचर है कि नहीं, 100 बच्चे है कि नहीं, इंटेक पूरा भरा है कि नहीं, नंबर ऑफ कुर्सियाँ कितनी है, कितनी एकड़ की लैंड है, नंबर्स। क्वांटिटी सही है क्या आपके पास, कंप्यूटर्स 50 होना 60 है क्या, क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव क्या होता है, ऑब्वियसली मैंने लिखा 50 है, उनको लगती 40, नियम के हिसाब से 50 है, गुड, फुल ऑन फुल मार्क्स। तो ये जो क्वांटिटी है, नंबर गेम है, ये ऑटोमेटिक होता है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड चेक हो जाता है, उसको असेसमेंट करके नंबर भी दे देते हैं डीवीवी के बाद। लेकिन क्वांटिटी, क्वालिटेटिव, टीचर तो है 10 होना 11 है और सब फालतू है। किसी का प्रोफाइल नहीं, किसी ने रिसर्च पेपर नहीं किया, किसी ने कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किया, वो देखने के लिए टीचर कमेटी आती है। हम लोग जाते थे, मैं भी नैक एसेसर हूँ फॉर लास्ट 2012 में बना हूँ मैं, 22-24 साल से आए नैक एसेसर। तो नैक असेसमेंट, जब भी हम असेसमेंट में जाते तो हम वही देखते कि यार तुमने लिखा तो बड़ा यार,
तुम्हारा 50 एकड़ का कॉलेज है, ये है स्टोरी है, वहां देखे जाओ तो एक रिसर्च पेपर नहीं, एक क्वालिटी प्रोग्राम नहीं, वर्कशॉप नहीं, कॉन्फ्रेंसेस नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर क्या फायदा है ये सब इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज का? मेरे को नहीं मजा आ रहा। यस प्रभात सर, वांट टू से समथिंग? सर ये जो डीवीवी होता है ये मतलब हर साल होता है? थोड़ा सा मुझे इस पे बता पाएंगे सर? ये जो क्वांटिटेटिव डेटा है ये किसी एक पोर्टल पे एक साथ हम अपलोड कर सकते हैं या रेगुलर नहीं नहीं रिपोर्ट? नहीं 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 नहीं, ये जो आप एसएसआर सबमिट करोगे ना, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट जो सबमिट करते, नैक को जब आपको अप्लाई करना है, नैक आपका अगर अभी है, उसके बाद जब नैक को अप्लाई कर रहे हैं ना, तो अप्लाई करते वक्त आप लिखोगे हमारे बच्चों को 180 अवार्ड मिले, मेरे टीचर मिलके 112 रिसर्च पेपर है। आप जो क्वांटिटी लिख रहे हो ना सब जगह, और उसकी डिटेल सबमिट करते हो पोर्टल पे, ऑनलाइन पोर्टल पे नैक के, तो वो क्या हो जाता है, वो प्रोसेस हो जाता है पूरा सॉफ्टवेयर से, और उसमें वो शक की गुंजाइश ना रहे, आपने झूठ ना दिया रहे, इसलिए वो क्या करते हैं, रैंडम ढूंढ लेते हैं। आपने लिखा था ये 3rd ईयर का जो अजय है, इसको गोल्ड मेडल मिला स्विमिंग का, वो गोल्ड मेडल का फोटो तो भेजो। ऐसा आपने बोला था 12 टीचर मिलके 150 पेपर है, तो ये वाली मैडम का ना ये वाला पेपर का मेरे को कॉपी भेज दीजिए। वो रैंडम पिकअप करते, इसको बोलते डेटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, डीवीवी। तो वो क्या हो जाता है, आपने 50 टाइप की क्वांटिटी लिखी हुई है ना, आपने लिखा मेरे को 50 क्लासरूम है, तो बोल देगा ये क्लासरूम नंबर 4 नहीं, FF4G कुछ आपका नंबर होगा, 4थे फ्लोर की 3री रूम, उसका मेरे को डिटेल फोटोग्राफ और वीडियो चाहिए, ताकि आप पकड़ में आते। ये डेटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, और इसको आपको सिर्फ 2 दिन मिलते हैं। डेटा सबमिट करने के बाद, पोर्टल सबमिट होने के बाद, जब उसको उनको जो जो डाउटफुल लगता है या जो जो उनको लगता है कि चेक होना चाहिए, उसको हमको क्या करना पड़ता, डीवीवी देना पड़ता। फिर वो उसका आता है, हम लोग उसको सबमिट कर देते हैं, दैट्स ऑल, दैट इज डीवीवी। ये सबमिट करते वक्त की बात है। थैंक यू सर। वही है। तो फिर ये, तो वो क्या हो जाता कि उसके बेसिस पे हमको ना 70% मार्क मिल जाते पहले की, और फिर क्वालिटी जब कमेटी आती 30% वो वैलिडेट करती थी। ये पहला पुराना पैटर्न है, अभी पूरा पैटर्न चेंज है कि इंडिकेटर्स 34 थे, यूनिवर्सिटी में भी 34 रहते, ऑटोनोमस कॉलेज में भी 34 रहते, और की इंडिकेटर्स से ही मार्क देते। मार्क 1000 मार्क की स्केल है, 1000 मार्क की स्केल पे पॉइंट कैसे आते हैं, मतलब 4 पॉइंटर पे आता है, मैं वो भी बता देता हूँ 1 मिनट। हाँ, तो सारा स्केल 4 में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको 1.5 से ज़्यादा मार्क, आउट ऑफ 4 मार्क्स आते हैं आपको, 4 में से अगर आपने 3.51 से ज़्यादा कर लिया तो आपको A++ मिल जाएगा। CGPA मिलता है, CGPA 4 में से CGPA रहता है, फाइनल ग्रेड मिलता है आपको। 3.26 से 3.5 पे बीच में आ गया तो आपको A+ मिलता है। हमारा 3.48 मिला था, 0.02 से हमारा A++ चले गया, पर वैसा रोका था। तो ऐसा ये ग्रेडेशन सिस्टम है। 1.5 के नीचे मिला तो समझो 0, 1.5 के नीचे कुछ भी नहीं। सो 1.51 यानी D यानी नॉट एक्रेडिटेड है, 1.5 के नीचे रहेगा तो आपको एक्रेडिटेशन मिला ही नहीं, समझो, यू हैव टू रिपीट। सो दीज आर दी CGPA पॉइंट्स और जो ग्रेडेशन थे। फिर डेटा रिक्वायरमेंट क्या रहता है जो आप पूछ रहे थे ना सर अभी, तो ये डेटा टेम्पलेट के अंदर भरना पड़ता डॉक्यूमेंट्स, और उसकी क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स डालना पड़ता। मतलब आपको क्या क्या देना पड़ता, SSR के साथ सेल्फ स्टडी रिपोर्ट जो रहता है सबमिशन के वक्त, उसके साथ आपको एग्जीक्यूटिव समरी देना है, प्रोफाइल ऑफ यूनिवर्सिटी देना है, एक्सटेंडेड प्रोफाइल ऑफ यूनिवर्सिटी देना है, क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क देना है, QIF वैल्यूएटिव रिपोर्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट देने सबके, और डेटा टेम्पलेट। सब ऑनलाइन है, जैसे जैसे भरते जाओगे फटाफट आते जाएगा, और उसमें जितना डाटा क्वांटिटेटिव है उसका क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स पे नंबर मिल जाते, वो नंबर वेरीफाई करने के लिए डीवीवी है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। आप पहले तो IIQA सबमिट करना पड़ता, वो हो गया कि फिर आपको डेट मिलती, पोर्टल मिल के आप SSR करते हो, SSR हो गई कि फिर उसका SOP देख के आप उसको वो करो, फिर DVV आएगा, फिर प्रोसेस DVV की लास्ट डेट के अंदर आपने अगर सही से भेज दिया तो आपका QIM फिक्स हो जाएगा। फिर प्री क्वालिफायर उसमें शुड स्कोर 25%, क्वांटिटी में भी 25% नंबर आना चाहिए। 1000 में से 250 के ऊपर आप जा रहे हो तो ही आपका आगे जाएगा, नहीं तो आपका वैसे कैंसिल हो जाता है। तो मिल जाता, सबको मिलता है, इतना एकदम बेसिक रहता है कि एवरीबडी गेट्स दैट। सो 25% होने के बाद आपके पास कमेटी लगती थी, और कमेटी आके अभी मैंने लास्ट किया था, मैं 23 में मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में गया था, और बाप रे
दैट टाइम ये जो करप्शन परेशान सब स्टोरी हो गई थी, तो ऑनलाइन रखा था, और ऑनलाइन वाज सो टफ, वेरिफिकेशन ऑफ एंटायर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन वो एक दिन में। तो हम लोग वो बेचारे लैपटॉप लेके कार में घूम रहे, हॉस्टल जा रहे, हॉस्टल दिखा के हमको फिर ग्राउंड दिखा के ला रहे, कोई स्विमिंग पूल दिखा के ला रहा, 3 मोबाइल फुल स्पीड इंटरनेट पे ऑनलाइन रखना पड़ता, 1-2 लैपटॉप्स ऑन रखने पड़ते जिसपे हमारा जूम कॉल चलते रहता। वो जूम कॉल पे बहुत भयानक है, वेरी टीडियस, मतलब रात को तो हम थक गए थे। और नैक का ऐसा रूल था, यू कैन नॉट स्विच ऑफ। एक बार आपने सुबह 8:45 बजे स्विच ऑन कर दिया, गूगल ज्वाइन कर लिया, गूगल मीट, तो आपका जब तक नैक नहीं बोलता तब तक आप वो गूगल मीट एग्जिट नहीं कर सकते। कर लिए तो उनकी पूरी टीम कैंसिल हो जाएगी। बहुत टफ है, फिजिकली जाना पूरा था, वो मजा आता था, एक्चुअल देखो बात करो सब समझ में आता। ऑनलाइन में इतना टफ था कि कुछ भी नहीं हम कर पा रहे थे, पर करना तो जरूरी था। और वो साइड बाय साइड हमको स्क्रीन, वो मार्कशीट भी ऑनलाइन देना है, मार्कशीट के बाद वो प्रिंसिपल को दिखाना है। आखिरी के मेरे को बहुत टफ गए असेसमेंट करना, क्योंकि वो ऑनलाइन में समझता ही नहीं ना। वो एक जगह दिखा रहा है, हाँ ये वाली क्लासरूम, कि घर बाहर जाता कॉरिडोर में, अपने को क्या समझता, फिर से वही क्लासरूम मेरे को 10 बार दिखा दी होगी। तो वो बहुत टफ है, इट्स वेरी टफ। बट वो क्या हो गया था कि इतनी सारी पेंडिंग एप्लीकेशन थी, और मेन इवैल्यूएशन प्रोसेस तो स्क्रैप हो गई थी। वो स्क्रैप हो गई तो करना क्या, फिर ऑनलाइन कर लिया था। सो दैट वाज अ थिंग। फिर स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे बच्चों को आता है, इफ यू आर गुड दे विल डू दैट। असेसमेंट आउटकम कैसा रहता है, पहले पीयर टीम रिपोर्ट आता है, स्ट्रेंथ वीकनेस स्वॉट आ जाता है, स्वॉट स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस रिपोर्ट आता है, फिर उसका QNM और QLF का वो आ जाता है, पार्ट 3 आ जाता है। फाइनली तीनों पार्ट मिलके पीयर टीम रिपोर्ट, पार्ट 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पार्ट 3 ग्रेड शीट, ये सब मिलके फिर फाइनली आपका ग्रेड आ जाता है। तो CGPA उसमें से कैलकुलेट होता है, इंस्टीट्यूशनल CGPA, और उसमें से फिर स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे ये वो सबका कंट्रीब्यूशन देके फाइनली आपको स्केल ऑफ 0 to 4 में बिठाना है। 3.2 देना है, 3.1 देना है, ये सब करना है। वो करके फाइनली उसका स्कोर आ जाएगा, समझो 3.51 तो हो गया A+। दैट इज हाउ इट वर्क्स। अभी अपने को क्या करना है, कॉलेज क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसा है, विजन, मिशन, PO, CO, इस पे बहुत अच्छा काम करना है, क्योंकि इसी से मैपिंग लोग ढूंढते हैं। फिर स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस को अच्छी से स्टडी कर लेना है, डिपार्टमेंट का, टीचर का, प्रॉपर कॉलेज का, मैनेजमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए सबका, वो करिए। वेबसाइट एकदम कंप्लीटेड और अच्छी रखिए हमेशा, क्योंकि जो भी नैक की कमेटी है, जो भी विजिट करेगा, जो भी नैक का बंदा है, वो यही चेक करेगा कि वेबसाइट से ही चेक करेगा कि इनके पास है कि नहीं। ये टीचर का फोटो नहीं, मुझे ये तो इन्होंने जुगाड़ किया है कुछ तो भी, वो दे विल नॉट अप्रूव। सो वेबसाइट हैज टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट। फिजिकल एम्बियंस, साइनेजेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि भी ऑनलाइन होने वाला है सब। डॉक्यूमेंटेशन के प्रूफ्स बहुत ही परफेक्ट होने चाहिए, उसमें जरा भी गड़बड़ नहीं चाहिए। मीटिंग्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। यस सर, एक बार अगर नैक के लिए अप्लाई किया है तो नेक्स्ट टाइम कितनी देर बाद अप्लाई कर सकते हैं सर? और अगर हमारे कॉलेज की रेटिंग A ऐसे अच्छी हो जाती है तो सर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब कॉलेज और फैकल्टीज के लिए? बहुत है सर। अभी तो मैं बस ये जो मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ, मैं अभी अगले 3 स्लाइड आप देख लो, अभी तो बहुत ही चेंज हो गया है सारा। ये कॉन्सेप्ट सेम है, 7 क्राइटेरिया सिर्फ जो सेम है उसको मैंने बोल दिया, लेकिन जो मेन बदलाव है ना वो अभी आपको बताता हूँ। नैक ने अभी चेंज कर दिया है, बाइनरी MBGL नाम की नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी है। क्या कर दिया? मैच्योरिटी बेस ग्रेडेड लेवल्स। अब नैक में क्या होता है, आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये जो चालू होने का है, मैं 2025 के उनके जो GR से उससे मैंने डाटा लिया है। तो अब नैक ने क्या कर दिया है, नैक में 2 ही कैटेगरी है, एक्रेडिटेड, नॉट एक्रेडिटेड। मतलब क्या हो गया, बाइनरी। पहले क्या A++, फिर लोग कंपटीशन करते थे, उसको ब्राइब करेंगे कमेटी वाले को, बोलेंगे सर 2 मार्क दे दो ना, ज़्यादा हम A+ आ जाएंगे ना, आधा मार्क कम, तो वॉट एवर नॉनसेंस। ये सब बंद ही कर दिया अभी आधा आधा कुछ नहीं, या तो आप एक्रेडिटेड है या नहीं, नॉट एक्रेडिटेड, एक्रेडिटेड, इसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। एक मीडिया है, हाँ, Tier A बोलते हैं इसको। अब Tier A मैंडेटरी है सबको। उसमें क्या हो रहा है, एक्रेडिटेड, नॉट एक्रेडिटेड, उसमें कोई ग्रेड नहीं, ABCD कुछ नहीं है। असेसमेंट AI सपोर्टेड है पूरा अभी, जो DVV से लेके जो आपका क्वांटिटेटिव का कैलकुलेशन, मार्क अलॉटमेंट, सब कुछ AI बेस। और उस AI का DCF बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसकी वैलिडिटी अभी दुनिया का कोई भी एक्रेडिटेशन नैक का आप ले लो, आपको 3 ही साल का मिलेगा।
पहली बात, पहले 5 साल का मिलता था, अभी 3 कर दिया। और अभी पहले वो जो अलग अलग ग्रेड मिलते थे वो ग्रेड बंद हो गए। अभी क्या मिल रहा है? एक्रेडिटेड, नॉट एक्रेडिटेड। फिजिकल विजिट्स बंद हो गई। पर्पस मिनिमम क्वालिटी थ्रेशोल्ड रहे, आप एक्रेडिटेड बोले जाओगे। और एवरी इंस्टीट्यूशन सीकिंग नैक स्टैंडर्ड मस्ट है बाइनरी फर्स्ट। एक बार ये बाइनरी में आपने अप्लाई करना है सभी ने, आपको ए या एनए मिल जाएगा, एक्रेडिटेड और नॉट एक्रेडिटेड। उसके बाद आपको ऑप्शन है कि आपने एमबीजीएल में जाना है कि नहीं, मैच्योरिटी बेस। क्योंकि जो सीनियर कॉलेज है, अच्छे कॉलेज है, वो क्या क्यों ऐसा एक्रेडिटेड लिखेंगे? एकदम बेकार से बेकार कॉलेज भी लिखेंगे एक्रेडिटेड, और अपने जैसे बड़े कॉलेज है, अच्छे कॉलेज है, उनको भी लिखना पड़ेगा एक्रेडिटेड। तो दोनों में क्वालिटी डिफरेंस कैसा? सो नैक ने क्या प्रपोज किया? एमबीजीएल सिस्टम। व्हाट इज एमबीजीएल? मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड लेवल्स। मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड लेवल मतलब कॉलेज की कितनी मैच्योरिटी है। कॉलेज की मैच्योरिटी कैसे काउंट होगी? स्टूडेंट्स की मैच्योरिटी, आउटकम, टीचर की मैच्योरिटी, टीचर का कंट्रीब्यूशन, फैकल्टी का समाजक, ये ग्लोबल प्रेजेंस, नेशनल प्रेजेंस, उसमें ये सब पैरामीटर डाल दिए। तो अब कैसा हो गया है कि एमबीजीएल और उसको पूरा मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च लेवल पे ला लिया, और सबको सिर्फ 3 साल का ही मिलेगा। एमबीजीएल भी मिलेगा तो 3 ही साल का मिलेगा। और एमबीजीएल क्या है मैं बताता हूँ अभी। हाँ, ये एमबीजीएल है। क्या है इसमें? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, मैच्योरिटी बेस ग्रेडेड लेवल्स। तो मैच्योरिटी बेस लेवल को क्या बोलते हैं कि अभी उसमें मतलब एक्रेडिटेड नॉट एक्रेडिटेड तो हो गया, वो तो मिनिमम है, एंट्री पॉइंट है, सबको ही करना है। फिर आप अगर एक्रेडिटेड है तो आपको ऑप्शन लेना है कि आपको कौन सी लेवल में अप्लाई करना है। अगर आप अच्छे कॉलेज हो, सीनियर कॉलेज हो, तो आपने लेवल 3 या 4 पे जाना चाहिए। और आप एकदम ही इंटरनेशनल लेवल के कॉलेज हो, ग्लोबल प्रेजेंस है, आपका पूरी दुनिया पहचानती है आपके कॉलेज को, तो आपने 5th लेवल के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसको जब अप्लाई करोगे तो इसका सेपरेट फॉर्म है। ये अप्लाई करने के लिए इसमें देखो अभी एक एक करता हूँ फटाफट, अपना टाइम भी हो रहा है। लेवल 1, लेवल 1 कौन है? एकदम सबसे बेसिक। आपने सब वो IQAC रिपोर्ट भर दीजिए, आपने नॉर्मल सब अपना काम कर लीजिए, आपके 7 क्राइटेरिया में थोड़े थोड़े जो भी नंबर आ रहे, पासिंग नंबर आ रहे, AQR आपका सबमिशन है सालाना, ये वो सब ठीक ठाक है। आपका फुल्ली डिजिटल AI बेस्ड इवैल्यूएशन होके आपको लेवल 1 एक्रेडिटेशन का नाम मिल जाएगा 3 साल के लिए। थोड़ा आप बेटर हो, 10-12 साल पुराने इंस्टीट्यूट हो, तो फिर आप लेवल 2 के लिए अप्लाई करिए। लेवल 2 में हायर लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा, IQAC का क्वार्टरली मीटिंग्स, उसके मिनट्स चेक होंगे, रिसर्च आउटपुट में ऐसी ग्रोथ दिखनी चाहिए। 2 साल पहले 12 पेपर हो रहे थे स्कोपस में, अभी 40 हो गए, एक अच्छी ग्रोथ दिख रही। स्टूडेंट आउटकम में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखनी चाहिए। मतलब इंस्टीट्यूट डेवलपिंग लेवल पे है, डेवलप तो नहीं चाहिए, डेवलपिंग है। मतलब 5 साल में हर साल प्लेसमेंट बढ़ रही, आउटकम बढ़ रहा, रिजल्ट अच्छा आ रहा, टीचर्स के प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो रही, टीचर के पेपर्स बढ़ रहे, टीचर का फॉरेन ट्रिप्स बढ़ गई, टीचर के इंटरेक्शन, इंडस्ट्री इंटरेक्शन बढ़ गया, बढ़ रहा है सब। अगर आपको लग रहा है आपकी इंस्टीट्यूशन डेवलपिंग स्टेज पे है तो आपने 2 नंबर पे अप्लाई करिए। एमबीजीएल क्या करोगे? लेवल 2 के लिए अप्लाई करो, उसका फॉर्मेट आएगा, ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसका भी पूरा का पूरा असेसमेंट AI बेस है, कोई कमिटी विजिट नहीं करेगी। लेवल 3 है एस्टैब्लिश कॉलेज के लिए, 15-20 साल, 25 साल, 30 साल जिनके हो गए, डीम टू बी यूनिवर्सिटी की लेवल जिन्होंने पार कर ली है, वो स्टेबल प्रैक्टिसेस, जिनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। आज नहीं है मेरे पास 5 साल पहले भी 200 पेपर थे, 5 साल पहले भी मैंने 12 कंट्री के साथ टाई अप है, 15 साल पहले भी मेरा 200 इंडस्ट्री के साथ मेरे लोग आ चुके हैं मेरे यहाँ पे। ये सब जो एस्टैब्लिश कॉलेज का जो एक लेवल रहता है, अगर ऐसा है आपका कॉलेज तो आपने फिर लेवल 3 में अप्लाई करिए। लेवल 3 में क्या हो रहा है? लेवल 3 में बहुत टफ है, इवैल्यूएशन टफ है, एक्सपेक्टेशन टफ है, लेकिन डिजिटल तो है ही, मतलब AI बेस पूरा हो रहा है, लेकिन एक्सपर्ट वैलिडेशन हो रहा है, मतलब ऑनलाइन आपको चेक करेंगे। जैसा मैंने बताया, अभी मैंने आखिरी सारे नैक का जो असेसमेंट किया मैंने ऑनलाइन किया, तो मतलब एटलीस्ट वो एक्सपर्ट को देख रहे हैं ना हम, एक्सपर्ट डायरेक्ट उनको क्वेश्चन कर रहा है, डायरेक्टर को, प्रिंसिपल को, वाइस चांसलर को, HOD को पूछ रहा है ऐसा कैसा हो गया, यहाँ दिखाओ क्या बात कर रहे। एक्सपर्ट का वैलिडेशन हो रहा है डायरेक्ट ऑनलाइन, लेकिन फिजिकल विजिट फिर भी नहीं है। तो लेवल 3 किसके लिए है? एस्टैब्लिश के लिए। लेवल 4 नेशनल एक्सेलेंस। लेवल 4 वो कॉलेज है जिनका इनोवेटिव लीडरशिप है, जिनका प्रेजेंस नेशनल है, पूरा इंडिया पहचान रहा हूँ। श्रीराम कॉलेज, IITs, NITs, मणिपाल इंस्टीट्यूट, वेल्लोर इंस्टीट्यूट, नेशनल प्रेजेंस है।
कोई ये नहीं सोचता कि मेरे गांव का कॉलेज है, मेरे गांव का कॉलेज वगैरह नहीं रहता उसमें। उसमें दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक और वेस्ट बंगाल से लेके तक मुंबई तक, एवरीबडी फील्स लाइक आई हैव टू टेक एडमिशन एंड स्टडी इन दिस कॉलेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो वेल्लोर में है कि मैंगलोर में है, इससे मतलब नहीं आता। तो बोलते हैं उसको नेशनल एक्सेलेंस। बच्चे को एडमिशन लेना है, कहाँ है किस गांव में, उससे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप एक नेशनल हाई क्वालिटी एक्सेलेंस की इंस्टीट्यूट हो। 2-4 डिसिप्लिन आप NRF का स्कोर तक पार कर चुके हो, इंडस्ट्री पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है, लाइव प्रोजेक्ट्स आपके पास आ रहे, हर टीचर कंसल्टेंसी कर रहा है, हर एक के पास प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं। ये लेवल का जब आ जाएगा ना, तो आप कौन सी लेवल पे जा रहे हो? लेवल 4, मतलब इंस्टीट्यूशंस नेशनल एक्सेलेंस। जो बड़े बड़े ब्रांड है इंडिया में प्राइवेट, वो लोग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, पहले तो वो आपका सब सबमिटेड रहेगा, वो AI बेस होगा, डिजिटल आपको ग्रेडिंग हो जाएगा, नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद एक्सपर्ट पैनल विजिट करेगा 2 दिन के लिए, और विजिट ही नहीं करेगा, स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन होंगे आपके साथ। HOD की अलग इंटरेक्शन, एल्यूमनी के साथ अलग इंटरेक्शन, हर एक के साथ सेपरेट इंटरेक्शन करके इवैल्यूएशन होगा। तो इसको बोलते 4 लेवल। So it is 4 level MPGL. Getting my point? 1 basic, 2 developing, 3 established, 4 national excellence, NRF लेवल का रहे, ये रहे वो रहे। लेवल 4 मतलब कैसा, इंडिया का बेस्ट हायर एजुकेशन जहां मिल रहा है, स्ट्रॉन्गर देन मेनी टाइम्स NIT नेशनल इंस्टीट्यूट से भी बेहतर इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी, वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एक्सेलेंस। अगर आपने इसमें अप्लाई किया तो बहुत टफ है, लेकिन मिल गया तो बहुत प्रेस्टिजियस है। और लेवल 5 क्या है फिर? ग्लोबल एक्सेलेंस। पूरी दुनिया के बच्चे आपके पास आ रहे हैं, आपका हर बच्चा दुनिया भर में घूम रहा है, आपके टीचर्स पूरा ग्लोबली प्रेजेंस है उनका, हर कंट्री में जाके पढ़ा के आए, कॉन्फ्रेंस में जाके, वर्कशॉप्स में, ग्लोबल प्रेजेंस है। सो इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल एक्सेलेंस जो होते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च है, यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेंशंस हो रहे, डिस्कवरीज हो रही, ऑलमोस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, वो उसको बोलते हैं लेवल 5 ग्लोबल एक्सेलेंस। तो यहाँ पे तो बहुत टफ है, लेकिन 5th लेवल पे तो कोई अप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा उनका कहना है। ये 4th में ही बहुत टफ जाने वाला, इनोवेटिव लीडरशिप के साथ नेशनल प्रेजेंस होना। पर इसमें काफ़ी इंस्टीट्यूट जा सकते हैं जिनको 30-35 साल का स्टैंडिंग है, दे कैन प्रूव इफ दे आर गुड कंसिस्टेंटली गुड चाहिए, तभी होगा, और मिलेगा फिर भी 3 ही साल का। सो 4th लेवल इज नेशनल एक्सेलेंस एंड 5th लेवल इज ग्लोबल एक्सेलेंस। ये पूरा चेंज हो गया NAAC अभी MPGL सिस्टम आने से। इसमें तो क्या है, एक्सपर्ट पैनल भी आएगा आपके पास, डिजिटल असेसमेंट भी होगा, और इंटरनेशनल बेंचमार्किंग करेंगे। आपके साइज की इंस्टीट्यूट एक अमेरिका में है, आप ही के साइज की एक इंस्टीट्यूट UK में है, पेरिस में है, लंदन में है। What are the comparative benchmarking between these 2 universities, and then they will tell you कि you are a global institution, your quality parameters are globally recognized। ये लेवल पे जाना पड़ेगा, ये बहुत टफ है, ये बहुत टफ है। पर 5 लेवल का अगर किसी को मिल गया तो समझो वर्ल्ड क्लास हो गई इंस्टीट्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट? सो 1 2 3 4 MPGL आ गए। और 5 लेवल में कैसा होता है ना, 5 लेवल के स्ट्रक्चर में भी क्या ये आर्बिट्री नहीं है, इसको आपको ना ट्रेजेक्ट्री मेंटेन होने वाली है। यानी पिछले साल अगर आपने तावता में अप्लाई कर दिया, 4 पे चले गए, 3 साल बाद आप अगर 3 पे आ रहे हैं, ये ट्रेजेक्ट्री आपके स्कोर को भी मार्क करेंगे। मतलब आपको सस्टेनेबिलिटी नहीं है, आप में अपन सस्टेन नहीं कर पा रहे ग्रोथ। किसी साल किसी कॉन्फ्रेंस में 10-20 पेपर हो गए, इसलिए आप 4 लेवल पे चले गए, लेकिन फाइनली आपकी लेवल जो है वो 3 वाली है। तो वो लेवल 1 2 3 4 अप डाउन अगर हो गया तो ट्रेजेक्ट्री फॉर्म होती है, और उसके हिसाब से आपको ग्रेडेशन होता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये MPGL आ गया है। टियर A क्या है? टियर A इज बाइनरी, एक्रेडिटेड, नॉट एक्रेडिटेड, सिंपल 7 क्राइटेरिया में आप डेटा भर दीजिए, 99% चांस है आपका, अगर ठीक ठाक कॉलेज है आपको एक्रेडिटेशन होगा। और ये जो लेवल में जाना है अगर, तब आपको एक एक पॉइंट पे रिगरस काम करना है, फिर आप ऐसा चिल्लर काम कर नहीं सकते। हर एक जगह आपको इंडिविजुअल लेवल्स पे काम करना पड़ेगा। तो ये जैसे रिसर्च इनोवेशन है, 200 मार्क है यार, प्रमोशन ऑफ रिसर्च, ये एक एक पॉइंट को लेके आपको, क्योंकि ये मेन है यार, 200 मार्क है इसको,
अब ये आप नहीं कर पाए तो आपका खत्म है, क्योंकि ग्लोबल एक्सेलेंस, नेशनल एक्सेलेंस में क्या बच्चे का पढ़ाई लिखाई थोड़ी जा रही, वहाँ जा रहा है मेरे रिसर्च पेपर, मेरे पेटेंट, मेरा इंटरनेशनल इंडस्ट्री इंटरेक्शन, मेरा जा रहा है, टीचर का जा रहा है। तो ये वाला क्राइटेरिया 3 अभी फोकस हो जाएगा आपका एकदम। अगर आपको MBGL लेवल में आपको अगर थोड़ा भी ठीक ठाक जाना है, 4 में भी जाना है, तो ये वाला क्राइटेरिया सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम। आपका बच्चा दुनिया में प्लेस्ड है कि नहीं, बेस्ट ऑफ द ब्रांड बना रहा है कि नहीं, रेपुटेशन है कि नहीं, आपके आउटकम की बात हो रही कि नहीं। तो ये वाला जो क्राइटेरिया है 2.1, 2.2, इस पे भी भयंकर ताकत से आपको नंबर लाने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट और R&D पे सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो एलुमनी एंगेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। ये अगर आपने ताकत से काम कर लिया, और ये डिस्टिंक्टिवनेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, फिर वो 4 इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, करिकुलम वगैरह ठीक है, वो तो हो जाएंगे, वो जो है वो ही है, मतलब उसमें दूसरा चेंज नहीं कर पाएंगे, आप बिल्डिंग नहीं थोड़ी बनाएंगे, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस चेंज हो सकती, वैल्यू सिस्टम चेंज हो सकता, डिस्टिंक्टिवनेस जो पूरी इंडिया में नहीं वो मेरे पास है, ऐसा कुछ है, वो ढूंढना पड़ेगा। ये 3 पैरामीटर 7, 2, 1 और 3, इसमें अगर आपने ताकत से काम करना शुरू किया तो आपको बहुत ही अमेजिंग रेडीनेस रहेगा। और 1-2 महीने में नैक का पोर्टल ऑन हो रहा है, ऑन होने के बाद यू हैव टू अप्लाई एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट, बट प्रोवाइडेड लास्ट 5 years, 5 साल का डाटा ले रहे हैं, 5 साल से अगर आप ऐसे अपने आप को ग्रिल करके अपने आप को इक्विप करके रखा है तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इट्स 2 o'clock, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आंसर मी, यू कैन आस्क मी। थोड़ा बहुत आपको कोई सजेशन, आपका कुछ कमेंट्स होंगी, दैट आल्सो यू कैन कम अप विद, एंड दीज आर माय सोशल मीडिया, यू कैन बी इन टच विथ मी ऑन एनी ऑफ दिस सोशल मीडिया, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी आप मेरे को पिन कर सकते हैं, अपनी कभी बात हो सकती है। थैंक यू सो मच। Sir, can I have questions? Yeah. Hello, sir. Yes, yes. Dr. Rahul here. Yeah. Sir, Yeah. I heard recently that for NAC assessment as well as for NIRF, and there are certain, for example, in our state Kerala, there is something called a state level assessment called KARF. Yes. Same thing. Yes. For all that, not only the website but also social media handles are also being assessed. Is that true, sir? Yes, Is there yes, anything? 100%. It is perception. Sir, NRF is already on depending on perception, and now NRF based AI based learning हो रहा है। So आपका perception कैसा पता चलेगा? How society accredits you? What is your impression in society? तो ये तो बिल्कुल सोशल मीडिया, आपका लिंक्डइन अकाउंट होना जरूरी है, आपका गूगल सर्च इंजन ऑपरेशंस को मॉनिटर किए वाला होना चाहिए, आपकी वेबसाइट बहुत ही हाईली डायनामिक होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। ऑनलाइन प्रेजेंस ओनली कैन टेल, राइट? Otherwise, a person from Kerala, how he will assess an institution in Maharashtra? He will Yes, check. sir, He will just absolutely. Yes, put the yes. name of Google, और वो आप मेरा विवेक नानोटी डाल दीजिए, sorry not boasting myself, but if you post just put Google में विवेक नानोटी, you will get at least 1,000 entries of my presence. So many countries, LinkedIn, Facebook, Instagram stories, videos, YouTube videos, like you know that shows that you have a good presence. अगर वो नहीं है ना तो फिर वो नहीं हो पाएगा। प्रेजेंस बहुत जरूरी, परसेप्शन है, इट्स सोशल परसेप्शन। Okay, sir. Thank you.